Namaskar, I'm Sunil Gavaskar. Life is precious and we've got to safeguard it. There have been so many sudden cardiac arrest deaths that it is really concerning and worrying. And many of those deaths could have been avoided if people around knew CPR or cardiopulmonary resuscitation. Now, this is a skill, a life saving skill that should be learnt by all those who are above 15 years old because you can actually save a life. There are several medical doctors in Mumbai who, under the aegis of eye care, have a workshop online and completely free of cost where you can actually learn CPR. And in doing so, you could save many a life. You might see such. So please take up this opportunity to learn CPR, and who knows, you could be saving a life or two. God bless you all. Hi, I'm Karthik Aryan. Life is fragile and precious, and cardiac arrest is the leading cause of sudden death across all age groups. And if you're trained in CPR or cardiopulmonary resuscitation, you can save a life if someone has a cardiac arrest in front of you. Learn this life saving skill with the hour long online workshops being conducted by iCare, an initiative of cardiologists who have seen too many deaths that may have been prevented. It's time for us to step up and get active in our own communities. We can, and we'll soon be at par with the countries where almost everyone over the age of 15 knows CPR. Let's do this together. Register for this free workshop with iCare and become a responsible citizen. नमस्कार, मैं हूं आमिर खान। दोस्तों, कार्डियक अरेस्ट या बहुत ही गंभीर दिल का दौरा हमारे देश में सडन डेथ या अचानक मौत की सबसे बड़ी वजह है। हमारे आसपास अगर किसी को कार्डियक अरेस्ट होता है और उस वक्त अगर हम सीपीआर देना जानते हैं तो शायद हम उस इंसान की जान बचा सकते हैं। अब ये सीपीआर क्या है और हम कहां सीख सकते हैं? सीपीआर एक मेडिकल फर्स्ट एड प्रोसीजर है जिसका पूरा नाम है कार्डियो पल्मोनरी रिससिटेशन, और आईकेयर नाम की संस्था है जो अपने वेबसाइट पर इसकी ट्रेनिंग फ्री में देती है। वेबसाइट का नाम है www.saveheartsfoundation.org। तो दोस्तों, आइए हम सीपीआर देना सीख लें ताकि ऐसे समय पर शायद हम किसी इंसान की जान बचा सकें। याद रखिए, वो इंसान शायद हमारा अपना भी हो सकता है। जय हिंद। नमस्कार, मैं हूं भाग्यश्री। आपको अचरज होगा कि हर साल अचानक होने वाले कार्डियक अरेस्ट से हमारे देश में लाखों लोगों की मृत्यु हो जाती है। लेकिन अब समय आ गया है बदलाव का। तो 25 सितंबर से लेकर 2 अक्टूबर तक कार्डियक अरेस्ट अवेयरनेस वीक मनाया जाएगा। आई केयर एक ऐसी संस्था है जो सीपीआर करना बिल्कुल सरल और आसान तरीके से सिखा सकती है। तो देर मत कीजिए, आई केयर के वेबसाइट पे जाकर रजिस्टर कीजिए और सीखिए सीपीआर करना बिल्कुल फ्री।
न जाने कब ये सीख किसी अपनों की जान बचाने में काम आ जाए। Register today on the iCare website and learn how to save a life. Dr. Kinjal ma'am, should we start now? She will join in between. Okay. Dr. Pandrapati sir is there. Okay. So we'll start, and as we come to ma'am segment, we'll decide as it comes if ma'am is joined, or then we'll. A very good morning to everyone present here today. I am Dr. Kinjal Goel, a health psychologist from Pune, and I'm honored to be present here in the august company of the Honorary Minister for Information and Tourism, Ms. Aditi Tatkare, Honorable Director General Dr. Pandrapati, Directors Mr. Ramdasi and Mr. Kamble. We also have with us the iCare team and our esteemed guests from all the medical bodies that have extended their support for the National Sudden Cardiac Arrest Awareness Week. Anand, can we have the slide, please? It is my privilege to welcome the Indian Heart Rhythm Society, the Maharashtra University of Health Sciences, the Cardiological Society of India, Mumbai chapter, the Indian Resuscitation Council, Mumbai, the Indian Medical Association, Mumbai West, the Indian Society of Electrocardiology, and the Association of Medical Consultants, Mumbai. I speak for the whole team when I say that I am thrilled to be in this group while conducting this special program on CPR. While ma'am joins us, I would like to start with Dr. Pandrapati, if he can come on and give us a few words, please. नमस्कार. मराठीत बोललं चालेल ना, कारण सगळे आपली मराठी मंडळी आहेत. चालेल. डॉक्टर मित्रांना मराठी समजतं ना सगळ्यांना? हो हो, सगळ्यांना मराठी येते. हा, नमस्कार. मी सुरुवातीला सगळ्यांचं स्वागत करतो. आपले जे डॉक्टर मित्र मैत्रिणी इथे आलेले आहेत आणि त्यांनी आता आपल्याला सांगितलं की सडन कार्डियक अरेस्ट अवेअरनेस वीक हा जो 25 तारखेला म्हणजे आज सुरू झालेला आहे आणि तो 2 ऑक्टोबर पर्यंत आहे. तर याच्यामध्ये त्याचं महत्व एवढं आहे. आताच आपण काही बघितले संदेश सेलिब्रिटीजचे की सीपीआर जर आपण शिकलो ती काही फार अवघड प्रक्रिया नाही, पण आपल्याला ती माहित नसतं. तर आपण अनेकांचे, आपल्या प्रियजनांचे किंवा आणखी कोणी आपले मित्र असतील, स्नेही असतील, परिचयातले असतील, संपर्कातले असतील, यांचे जीव आपण वाचवू शकतो. म्हणजे हे प्रशिक्षण किती मोलाचं आहे याची तुम्हाला त्याच्यावरून कल्पना येऊ शकते. आणि मी खरोखर iCareला धन्यवाद देऊ शकतो ना, आपले सर्वच मंडळी. त्यांची नावं जर घ्यायची झाली तर माझ्याकडे यादी आहे. यश लोखंडवाला जी आहेत, ब्रायन पिंटो आहेत, डॉक्टर अजित देसाई आहेत, डॉक्टर मंजू सिन्हा आहेत, सुमय्या राघवन आहेत, त्यानंतर त्याच्यामध्ये आनंद श्रीवास्तव आहेत, क्वेंटिन डिसोजा आहेत, वनिता अरोरा आहेत आणि डॉक्टर किंजल गोयल ज्या आता आपल्याशी बोलत आहेत. तर ही मंडळी आपला वेळातला वेळ काढून इथं उपस्थित आहेत. त्यांना एक कळकळ आहे की जास्तीत जास्त लोकांपर्यंत सीपीआर ची माहिती पोचावी आणि नुसती माहिती नको तर त्याचा प्रत्यक्षामध्ये उपयोग व्हावा आणि अनेक जीव त्याच्यामधून वाचावे. तेव्हा त्यांच्या या तळमळीला मी खरोखर सॅल्यूट करतो, त्यांच्या या कळकळीला सुद्धा मी सॅल्यूट करतो. आणि आज आपण बघतो की मीडियामध्ये असेल किंवा आपल्या डिपार्टमेंटमध्ये असेल, तर आपलं डिपार्टमेंट म्हणजे शेवटी मीडियाच आहे. गमतीने आपल्याला लोक सरकारी पत्रकार असं म्हणतात आणि ते खरं आहे. आपणही पत्रकार आहोत आणि पत्रकाराच्या इतकं धकाधकीचं आयुष्य मला वाटतं फार क्वचितच कुणातरी वाटायला येत असेल.
आणि धकाधकीचं नुसतं धकाधकीचं नाही, तर त्याच्यामध्ये तुम्हाला धावपळ आहे. अचानक कुठं जायला लागेल माहित नाही. सतत अलर्ट राहायला लागतं. 24 तासाचा अलर्ट तुमचा, म्हणजे 24 तास तुम्ही अलर्ट वरती असता. आणि असं असताना स्ट्रेस वाढतो, हे आपल्या सगळ्यांना माहिती आहे. डेडलाईन्स असतात, आपल्याला काही टार्गेट असतात, ही सगळी आपल्याला अचीव्ह करायची असतात आणि त्याच्यामध्ये स्ट्रेस वाढू शकतो. आणि स्ट्रेस वाढला तर आपल्याला माहिती आहे की स्ट्रेस ही सगळ्यात वाईट गोष्ट आहे सध्याच्या काळामध्ये. स्ट्रेस हे अनेक रोगांना जन्म देऊ शकतो. स्ट्रेसमुळे अनेक व्याधी निर्माण होऊ शकतात आणि वाढू पण शकतात. त्यामुळं आपलं जे, मला असं वाटतं की पत्रकार आणि आपल्या विभागाचे सगळे अधिकारी कर्मचारी यांच्यासाठी हे प्रशिक्षण आणखी आवश्यक का आहे, तर आपण दररोज, जसं तुकाराम महाराज म्हणतात की रात्रंदिना आम्हा युद्धाचा प्रसंग, तशा अवस्थेमध्ये आपण नेहमी असतो की आपल्याला रात्रंदिवस काही ना काही घडू शकतं. आपल्याला ते अटेंड करण्याची गरज भासू शकते किंवा गरज निर्माण होऊ शकते. आणि अशा प्रकारचं आयुष्य आपण जगत असल्यामुळे मला असं वाटतं की हृदयरोगाबद्दल आपण आणखी जास्त जागरूक असणं इतरांपेक्षा हे आवश्यक आहे. आणि नुसतं जागरूक असून चालणार नाही, तर आपल्याला त्याची माहिती असली पाहिजे आणि ती माहिती प्रत्यक्षात उतरवायची कशी, हे सुद्धा आपल्याला कसं आपल्याकडे असणं आवश्यक आहे. आणि म्हणून मला स्वतःला असं वाटतं की अधिक न बोलता, कारण की याच्यामध्ये आपल्याला माहिती घ्यायची आहे आणि ती माहिती प्रत्यक्षात नंतर उतरवायची आहे, तेव्हा मी डॉक्टर मंडळींना जास्त वेळ देऊ इच्छितो. आणि पुन्हा एकदा या सर्व संबंधित संस्था, सर्व संबंधित व्यक्ती ज्यांनी याच्यामध्ये सहभाग घेतलेला आहे आणि त्यांची तळमळ, त्यांची कळकळ, याला मी खरोखरच अभिवादन करतो. आणि अशा प्रकारच्या चांगल्या कार्यक्रमाचं आयोजन केल्याबद्दल माझे सहकारी रामदासी असतील, कांबळे असतील, त्यांचे अन्य सहकारी, या सगळ्यांनाही मी मनपूर्वक सुरुवातीला धन्यवाद देतो. आणि आपण या प्रशिक्षणाचा जास्तीत जास्त लाभ घ्यावा, सजगपणे आपण हे सगळं बघावं आणि जर काही शंका असतील तर निश्चितपणे विचाराव्यात, कारण अशा प्रकारे इतकी तज्ञ मंडळी एकत्र येणं जवळजवळ अवघड आहे. आणि म्हणून मी आपणा सर्व सहभागी मित्रांना अशी विनंती करू इच्छितो की आपण अत्यंत सजगपणे आणि लक्ष देऊन हे सगळं प्रेझेंटेशन असेल किंवा मार्गदर्शन असेल याचा आपण लाभ घ्यावा. पुन्हा एकदा मी सगळ्यांचं स्वागत करतो, पुन्हा एकदा सगळ्यांना धन्यवाद देतो आणि थांबतो. धन्यवाद. Thank you very much, sir. I shall now introduce one of the founders of iCare, Dr. Brian Pinto. Dr. Brian Pinto is the Director of Cardiology and Cardiovascular Services at the Holy Family Hospital in Mumbai. He has been at the helm of interventional cardiology for the past 35 years and a pioneer in transradial interventions. He has been instrumental in setting up the cardiology department at both Holy Family and Holy Spirit hospitals. He is a recipient of the William O'Neill Award for Excellence in Medicine. He has also been the recipient of the Economic Times Award 2020 and has numerous publications in both national and international journals. He has published repeatedly for the chapters in the CSI books. He is the President and Secretary General of the India International Forum of Cardiology. His reason for starting this program in iCare was driven by the fact that more than 2 million people die of sudden cardiac arrest in India, and that many of these, including his colleagues, have been under the age of 50 when this has happened. His aim is to make India a heart-safe nation where at least one member of every household should know CPR. Thank you, Sumaya. I now take the privilege to introduce our second founder, Dr. Yash Lokhandwala. Dr. Yash Lokhandwala is a cardiologist with special training in the electrical system of the heart. He has been at the helm of the field of cardiac electrophysiology since 30 years. Along with being a skilled clinician, he is also an astute academician with more than 220 publications and research papers in national and international journals. He is the author of a book titled Conventional Cardiac Electrophysiology, a Case-Based Approach, published in 2020. Dr. Lokhandwala has been in several leadership roles throughout his career. No one should die of a sudden cardiac arrest without a genuine effort at resuscitation is a motto he truly believes in. In fact, this was what drove him to start the CPR workshops under the aegis of iCare along with his colleagues, and he continues to lend his time and expertise to the cause. I now invite Dr. Lokhandwala to say a few words.
Namaste. Am I audible? Yes, doctor. नमस्ते. मी मराठीत बोलायचा प्रयत्न करेल. सगळ्यांना गुड मॉर्निंग टू ऑनरेबल मिनिस्टर आदिती तातकरे, रिस्पेक्टेड डायरेक्टर जनरल डॉक्टर अंधार पट्टे, आमचे एस्टीम डायरेक्टर्स गणेश रामदासी आणि दयानंद कांबले, आणि सगळी मित्रमंडळी जे आज इकडे उपस्थित आहे हे नॅशनल कार्डियक अरेस्ट अवेअरनेस वीकच्या उद्घाटनसाठी. जसं तुम्ही ऐकलं, CPR किंवा कार्डिओ पल्मनरी रिससिटेशन, आणि जसं तुम्ही बघाल हे ऍक्च्युअली सिंपल पण इफेक्टिव्ह मेडिकल फर्स्ट एड आहे, ज्याच्याने कोणाचा जीव आपण वाचवू शकतो, कार्डियक अरेस्टचे जे विक्टिम असतात त्यांचं. पण हे बरोबर रीतेने आणि इमिजिएटली टाइम मध्ये झालं पाहिजे. आम्ही आयकेअर मध्ये पब्लिकची ट्रेनिंग 2017 पासून याच्यामध्ये फ्री ट्रेनिंग करतोय. आम्ही एकदम स्मॉल प्रोजेक्ट बांद्रा आणि वेस्टर्न सबर्ब्सला चालू केलं होतं, पण मित्र बरोबर, सहयोग बरोबर आता ऑल ओव्हर इंडिया हे ट्रेनिंग आणि ऑनलाईन चालू आहे. आमचा मेजर गोल आहे की भारतात हे कॉन्व्हर्सेशन एक हे असं आपण म्हणतो की छातीत दुखलं तर हार्ट अटॅक असू शकतो, तसं कार्डियक अरेस्ट झालं तर CPR द्यायला पाहिजे, हे सगळ्यांच्या मनात असलं पाहिजे, हे आमचा हेतू आहे. त्यामुळे आम्ही अनेक ट्रेनिंग प्रोग्राम्स पोलीस, रेसिडेन्शियल सोसायटी, कॉर्पोरेट्स, शाळा, कॉलेजेस साठी करतोय. हे सगळे जे मेडिकल बॉडी सपोर्ट दिले त्याच्यासाठी आम्ही आभारी आहोत. आणि इवन इंडिव्हिज्युअल डॉक्टर्स ज्यांनी देशभर आमचा सहयोग दिलाय, आणि इवन अब्रॉड आमचे जे आपले भारतीय सेटल्ड आहे अब्रॉड, ज्यांनी आम्हाला एक्सपर्ट हेल्प दिलाय. मी स्पेशल मेन्शन करायला आय नीड टू डू ऑफ मिस्टर राजेश गोयल, MD कोहिनूर ग्रुप, ज्यांनी आम्हाला स्पॉन्सर पण केलंय आणि फुल प्रोत्साहन दिला ह्या प्रोग्रामसाठी. मी सगळे अटेंडीला विनंती करतो की पुढच्या 45 मिनिटं ते 1 तास तुम्ही फोकस करा आणि आमच्या बरोबर CPR शिका. आमची टीम सुमय्या आणि आनंद हे फारच एक्सपर्ट आहे हे शिकवण्यात. अँड ॲज मेंबर्स ऑफ द प्रेस, तुमच्याकडे खरं पॉवर आहे टू हेल्प मेक अ मच बिगर इम्पॅक्ट अँड अ डिफरन्स इन द सोसायटी. बाय लर्निंग अँड स्प्रेडिंग मोर अवेअरनेस अबाउट CPR, तुम्ही खरंच एक जेन्युइन कॉन्ट्रीब्युशन करू शकता भारताला एक सेफर प्लेस बनवायला फॉर कार्डियक अरेस्ट. साथ ही हाथ बढ़ाना. थँक यू. Dr. Pandharpate, should we start with our session and introduce Minister Ma'am when she joins? We can take a break in between. Yeah, sure. Yes, we can start because when she joins now, she can address us. Okay, so as soon as she joins, then I'll introduce Ma'am at that time. Thank you. Yeah, as soon as she hello, as Yes. soon as she enters, I think she's we can already there. introduce her. Yeah, she's already there. I think she has joined from Mr. Aniket Pawar's link. I'll just make her the co-panelist. मॅडम आपण आहात काय? हॅलो मॅडम. I've just made her a co-panelist, sir. She'll be on in a minute. ओके ओके. मग आपण 1 मिनिट असेल तर थांबू शकतो. We can wait for 1 minute. Yes, yes, we'll wait. And if it is getting late, then we can start. But let us wait for 1 minute, 1 or 2 minutes. Yeah. Ramdasi sir, if you can just check, has ma'am signed up with another name, Mr. Aniket Pawar? रामदास साहेब जरा बघून घ्या बरं, किंवा फोन करून विचारा. अनिकेत पवारच्या नावाने जॉईन झाले. मॅडम आपण दिसत नाहीत आम्हाला. Yes, we can see you, ma'am. मॅडम. अच्छा. Good morning, ma'am. Good morning. We are so sorry we started just before you joined. Okay, that's okay. I think I took a little time because we needed some kind of approval from your side to join as a panelist or as an attendee. So that was a confusion, I guess. Oh, Anyway, nonetheless. Anyway, Here, allow me to doc- introduce you, ma'am. Let me introduce you and then I'll hand over the stage to you. Okay. For all the rest of our audience who is not aware.
I speak for the whole team, ma'am, when I say that I'm thrilled to have you with us. Honorary Minister, Ms. Aditi Tatkare. Ma'am truly needs no introduction. From being the president of the Raigad Zilla Parishad to now being at the helm of affairs from her position as a state minister, Ms. Aditi has really come a long way. Her years spent working with women's empowerment and those spent working in various rural and urban settings have made her connect beautifully with the people she strives to serve through her post now. I invite ma'am to kindly say a few words and to inaugurate the National Sudden Cardiac Arrest Awareness Week. Thank you so much. राष्ट्रीय अकस्मात हृदयरोग जागरूकता सप्ताह या उपक्रमाच्या उद्घाटन प्रसंगी आयकेअर आणि माहिती व जनसंपर्क यांच्या महासंचालनाच्या संयुक्त विद्यमानाने आयोजित कार्यक्रमासाठी उपस्थित असणारे सन्मान्य डॉक्टर दिलीप पांढरपट्टीजी, कार्यक्रमाच्या निमित्ताने उपस्थित असणारे डॉक्टर यश लोखंडवाला, डॉक्टर या ठिकाणी मनोगत किंवा जे सूत्रसंचालक आहेत ते डॉक्टर किंजल. I wouldn't take much of a time because I know the entire next session of 45 minutes is more important. But basically I would मला खरंच मनापासूनचे आभार मानायचे की एक अतिशय चांगला, उपयुक्त आणि महत्त्वपूर्ण उपक्रम आपण हाती घेतलेला आहे. मला असं वाटतं की हल्ली जर आपण बघितलं तर गेल्या काही वर्षांपासून कमी वयाच्या नागरिकांमध्ये कार्डियक अरेस्टचं प्रमाण हे वाढलेलं आहे. अकस्मात निधन होणं आणि त्याची कारणं या बाबतीतले जास्ती जे काही मेडिकल टर्म्स मधले मुद्दे आहेत ते निश्चितच सगळे पॅनलिस्ट आहेत, सगळे डॉक्टर्स आहेत ते त्या ठिकाणी मांडतील. पण जे एक सामान्य नागरिक म्हणून आम्हाला गेल्या काही वर्षांपासून जाणवतात, एक तर लहान वयामध्ये कोणालाच असं वाटत नसतं की त्यांना हार्ट अटॅक किंवा कार्डियक अरेस्ट होईल. त्यामुळे सुद्धा आपण कधीच रुटीन चेकअप साठी किंवा हार्ट रिलेटेड चेकअप साठी कधी जात नाही. ही समज आपली असते की 50 इयर्स म्हणजे 50 नंतरच आपल्याला या सगळ्या म्हणजे बाबी होऊ शकतील किंवा म्हणजे हार्ट रिलेटेड इश्यूज हे एका विशिष्ट वयोमानाच्या नंतरच होतात. ती एक प्री कन्सिव्ह नोशन झालेली आहे आणि म्हणून बऱ्याचशा वेळेला लहान वयातली असणारी किंवा 30s मध्ये अर्ली 40s मध्ये असणारे नागरिक खूपदा रुटीन चेकअप साठी जात नाहीत आणि मग अचानक पद्धतीने असा त्रास झाला की दे डोंट रिअलाइज, त्यांना माहितीच नसतं की दे आर गोइंग थ्रू अन हार्ट अटॅक और कार्डियक अरेस्ट. सो आय पर्सनली फील दॅट इज वन थिंग विच नीड्स अन अर्जंट अटेन्शन. आपण गेल्या 1.5-2 वर्षामध्ये पण असे बरेचसे आम्ही इन्सिडेन्सेस वाचलेले आहेत, ऐकलेले आहेत. ते आपण बघतो की रोज एक्सरसाइज करणारे जे 30s मधले आणि 40s मधले नागरिक आहेत हे पण अचानक त्यांनाही कार्डियक अरेस्ट येतो आणि सडन डेथ त्यांची होते. तर त्या संदर्भात जास्तीत जास्त अवेअरनेस करणं मला वाटतं खूप महत्वाचं आहे आणि आपला हा जो सप्ताह आपण आयोजित केलाय त्या माध्यमातून आपण खूप आपला टार्गेट ऑडियन्स व्हावा, जास्तीत जास्त लोकांपर्यंत आपण पोहोचावं, त्याच्यातला अतिशय महत्वपूर्ण भाग राहील. आणि माहिती व जनसंपर्काची भूमिका इथेच महत्वाची ठरते की आपण जे उपक्रम हाती घेतो ते जास्तीत जास्त लोकांपर्यंत पोहोचवणं. आय एम क्वाईट शुअर की यामध्ये सहभागी होणारे किंवा आपल्याला या सप्ताहामध्ये मार्गदर्शन करणारे सर्वच जे काही वरिष्ठ डॉक्टर्स आहेत हे चांगले आपल्याला मार्ग सुचवतील. ज्या इमर्जन्सी सिच्युएशन मधल्या बाबी असतात, म्हणजे एखाद्याला अचानक पद्धतीने त्रास व्हायला लागला, म्हणजे आपण जे नॉर्मल आम्हाला सांगितलं जातं की लेफ्ट साइडचं पेन असेल, हात दुखायला लागला, पाठ दुखायला लागली, तर अनेकदा सगळे त्याचं एक आपल्याला खूप एक्झर्शन झालं असेल किंवा ऍसिडिटी असेल म्हणून हे पेन होत असतील, या रुटीन याच्यामध्येच राहतात आणि मग त्यांना हॉस्पिटल पोहोचायला बऱ्याचशा वेळेला अंगावर काढतात. मायनर अटॅक्स कधी येऊन जातात हे कोणाला रिअलाइज पण होत नाही. त्यामुळे या संदर्भात जे सविस्तर मार्गदर्शन आहे ते आपले सर्वच पॅनलिस्ट आहेत, सगळे डॉक्टर्स आहेत हे या ठिकाणी देतीलच. व्हॉट वी एक्सपेक्ट इज दॅट दिस नीड्स टू रीच अ लॉट ऑफ पीपल, स्पेशली इन देअर early 30s and their early 40s.
who are quite still unaware of the medical conditions or the changing medical conditions, I would say. So I would wish all the best, and we are quite happy, proud, and I feel extremely privileged to be part of this inauguration ceremony. मी आय केअर आणि माहिती व जनसंपर्क आणि त्याचबरोबर रिवाईव्ह हार्ट फाउंडेशन त्यांचे मनापासूनचे आभार मानते की एक अतिशय स्तुत्य उपक्रम त्यांनी हाती घेतला. मी याआधी मला वाटतं डॉक्टर यश हे मार्गदर्शन करत होते, and when he started with it, I was in assumption that we are all interacting in English today. When he decided to interact, मराठीमध्ये बोलतो मी, प्रयत्न मराठीमध्ये बोलण्याचा करतो. That means that we are trying to reach more of the people. म्हणजे आपण राज्यातल्या जास्तीत जास्त I think ma'am has lost range intermittently. Are we audible, ma'am? Can you hear us? Actually, she is traveling. Yes. Yeah, she's there. She's back, I suppose. Okay. I think ma'am has dropped off the range. What do you suggest we do, Ramdasi ji? She was just concluding, so we can go ahead now. So should we? I think we'll have to make ma'am panelist again. I'll just do that. अच्छा, उनका पूरा ही range drop हो गया. All right, I think we'll just begin with our session. We'll hope that ma'am can join us again. I now invite. Sorry. She can watch us. She can watch. She will continue to watch the training. All right. Without any further delay, I invite Sumaya, who is the operations head, and Anand, who is the project director of iCare, to start the CPR session. I request everyone, आपको जो भी सवाल मन में आते हैं, आपको कुछ भी पूछना है हमसे, आप प्लीज चैट बॉक्स में डालिए. एंड तक काफी लोग अपने सवाल भूल जाते हैं, तो आप जैसे जैसे सेशन आगे बढ़ता है, आप अपने सारे सवाल Q&A बॉक्स में, चैट बॉक्स में डालते जाइए. We will try and answer everybody. At the end of the session, we will also be taking live questions and answers. I think ma'am is back. I think so. Sumaya, you can go ahead and start. I think her video is just coming on. You want to give it a few seconds? Okay. Okay, let's go ahead. All right. So the topic for today, sudden cardiac arrest. ये हमने बहुत कम सुना है, लेकिन हार्ट अटैक बहुत कॉमनली यूज्ड है. So पहली चीज जो हमको समझना है आज कि हार्ट अटैक और कार्डियक अरेस्ट दो अलग अलग चीज है. तो हार्ट अटैक पे चलते पहले. हार्ट अटैक जब होता है जब हमारे दिल की नसें ब्लॉक हो जाती हैं. उसके बहुत सारे कारण हैं. बहुत टाइम से डायबिटीज है, हाई कोलेस्ट्रॉल है, पीने की आदत है, स्मोकिंग की आदत है. इस वजह से आर्टरीज ब्लॉक हो जाती है और खून ठीक से नहीं पास होता. तो क्या होता है हार्ट अटैक में? छाती में दर्द, उल्टी के जैसा फील होना, लेफ्ट आर्म में दर्द होता है, पीठ में दर्द होता है, आदमी बैठ जाता है, बहुत पसीना हो रहा है और बोलता है मेरे छाती में बहुत दर्द हो रहा है, प्लीज मुझे हॉस्पिटल ले जाइए. तो ये आपको बता रहा है कि उसकी तबीयत ठीक नहीं है, उसको छाती में दर्द हो रहा है, तो आप उसको जल्दी से टैक्सी या गाड़ी में बिठा के हॉस्पिटल लेकर जाते हो. ये हार्ट अटैक सिचुएशन है. लेकिन जो कार्डियक अरेस्ट है ये टोटली अलग चीज है. जो हमारा दिल ऐसे धड़कता है, आपका भी दिल ऐसे ही धड़कता है, दिल बंद हो जाता है. दिल बंद होने के बहुत सारे कारण हैं. पुराना हार्ट अटैक के कारण है, अपना हार्ट मसल जो है वो वीक हो सकता है, उस वजह से हो सकता है, कुछ जेनेटिकल डिजीज है या एनी इलेक्ट्रिकल डिस्टर्बेंस की वजह से दिल बंद हो सकता है. लेकिन अगर दिल बंद हो गया तो आदमी बस कोलैप्स हो जाता है.
कहीं पे भी, अपने घर में हो सकता है, स्टेशन पे हो सकता है, बीच में हो सकता है, मॉल में हो सकता है, कहीं पे भी है, अगर दिल बंद हो गया तो आदमी कोलैप्स। अब दिल का काम क्या है? खून पहुंचाता है हमारे पूरे शरीर में और हमारे ब्रेन तक भी। तो अगर दिल बंद हो गया तो ब्रेन तक भी खून नहीं जाता है, और 3 मिनट तक ब्रेन तक खून नहीं पहुंचा तो आदमी का ब्रेन डैमेज्ड कंडीशन में चला जाएगा, कोमा में चला जाएगा, और 10 मिनट में आदमी खत्म। अब बताइए, आपके सामने कोई गिर गया, 3 मिनट में इसकी मदद कौन करेगा? क्या आप हॉस्पिटल पहुंचोगे 3 मिनट में, या कोई एम्बुलेंस आएगा आपके पास 3 मिनट में, या कोई डॉक्टर आएगा आपकी मदद के लिए 3 मिनट में? चांस बहुत कम है। तो इसकी मदद कौन करेगा? आप ही करोगे। लेकिन आप कब करोगे? जब आपको आता है क्या करना है ये सिचुएशन में, ये क्रूशियल 3 मिनट में आपको क्या करना है, यही हम आपको आज सिखाने वाले हैं। तो जब मैं बोलती हूँ आपके सामने कोई कोलैप्स होता है, हर कोलैप्स कार्डियक अरेस्ट नहीं है। आदमी बहुत सारे कारण से गिर सकता है। ब्रेकफास्ट नहीं किया, शुगर ड्रॉप हो गया, आदमी कोलैप्स हो गया। दवाई ज्यादा ले ली, उस वजह से कोलैप्स हो गया। मिर्गी के वजह से आदमी कोलैप्स होता है, या दारू पी के भी आदमी गिर जाता है। कितने सारे कारण है। जो पहली चीज हम आपको सिखाएंगे वो है, हमको पहचानना है कि जो आपके सामने गिरा है वो कार्डियक अरेस्ट की वजह से गिरा है और कोई वजह से गिरा है। दूसरी चीज हम आपको सिखाएंगे CPR या कार्डियक मसाज। और तीसरी चीज जो हम आपको सिखाने वाले हैं वो है ये मशीन, इसको बोलते हैं AED, ऑटोमेटेड एक्सटर्नल डिफिब्रिलेटर। ये ले लैंग्वेज में इसको शॉक मशीन बोलते हैं, क्योंकि ये दिल को शॉक देता है ताकि अपने आप पंप करना शुरू कर दे। आपने देखा होगा ऑपरेशन थिएटर में डॉक्टर लेके जाता है, ऐसे झटका देता है और बोलता है ठीक हो गया। पिक्चर्स में बहुत सारे दिखाते हैं। ये मशीन वही काम करती है, लेकिन हॉस्पिटल में बड़ी मशीन है, ये छोटी सी है, पोर्टेबल है, जगह जगह हमने लगाया है हमारे प्रोजेक्ट की वजह से। लेकिन ये आपको स्टेप बाय स्टेप बताएगी आपको क्या करना है। तो ये डॉक्टर के यूज के लिए नहीं है, आपके यूज के लिए है। तो इसको कैसे यूज करते हैं वही हम आपको सिखाएंगे। तो चलते हैं, प्रेजेंटेशन स्टार्ट करते हैं आनंद। ओके। नमस्कार, मेरा नाम आनंद है। प्रेजेंटेशन आगे कंटिन्यू कर रहा हूं मैं। देखिए, हमने 2-3 चीज हमेशा ऑब्जर्व की है, और उनमें से एक ये है कि अगर हम कभी पब्लिक स्पेस में है तो हमने ऑब्जर्व किया है कि अगर कोई कोलैप्स हो जाता है तो बहुत सारे लोग आके इकट्ठा हो जाते हैं और वो देखते हैं कि क्या हो रहा है, लेकिन जो मदद करने वाले लोग होते हैं वो बहुत कम होते हैं। तो मेरा ये सवाल है सीधा सीधा कि ऐसे किस तरह से होता है कि बहुत सारे लोग आ गए लेकिन कोई ज्यादा मदद करने की कोशिश नहीं कर रहा है। और ऐसा भी नहीं है कि जो मदद नहीं कर रहे हैं, जो भीड़ में खड़े हैं, वो इस सिचुएशन से सेंसिटिव नहीं है, ऐसा भी नहीं है। तो क्या प्रॉब्लम है? हमारे हिसाब से 2-3 प्रॉब्लम्स हैं। जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम हमको लगता है वो ये है कि सबको थोड़ा सा वरी होता है पुलिस को लेके या फिर लॉ को लेके, कि अगर हमने उस इंसान को मदद की पब्लिक स्पेस में और कुछ उल्टा सीधा हो गया तो ऐसा ना हो कि केस हम पर बन जाए या फिर हमको बहुत ज्यादा इनकन्वीनियंसेस का सामना करना पड़े। तो ये प्रॉब्लम बहुत क्रॉनिक हो चुकी थी, और इसको मद्देनजर रखते हुए हमारी सरकार ने कुछ गाइडलाइंस बनाई, और उन गाइडलाइंस का नाम दिया द गुड समैरिटन लॉ। ये 2016 में इन गाइडलाइंस को तैयार किया गया, और इन गाइडलाइंस के हिसाब से ये बोला गया है कि, और रादर पुलिस को ये एडवाइस किया गया है कि अगर कोई इंसान, कॉमन मैन, ले सिटीजन, अगर किसी दूसरे कॉमन मैन की मदद कर रहा है क्योंकि उसको तकलीफ हो रही है, तो पुलिस को उससे उसका आइडेंटिफिकेशन नहीं पूछना चाहिए। So this is what the guidelines say that the government made. दूसरा कारण जो हमको लगता है लोग क्यों मदद नहीं करते हैं वो ये है कि लोगों को पता नहीं है कि करना क्या है, और स्पेसिफिकली व्हेन इट कम्स टू सडन कार्डियक अरेस्ट तो लोगों को नहीं पता है कि क्या करना चाहिए बेसिकली। तो हम आपको उसके बारे में जरूर बताएंगे। और तीसरा कारण है कोविड-19, जो आपको पता है आजकल चल ही रहा है। इसके बारे में ज्यादा डिटेल में ना जाते हुए 1-2 लाइन ही बोल देता हूं, और वो ये है कि आप जब भी किसी की मदद करो तो कोविड प्रोटोकॉल्स का पूरा आपको ख्याल रखना है, यानी कि आपको अपने फेस पे मास्क पहनना है इससे पहले कि आप मदद करें। और अगर विक्टिम को आप मदद कर रहे हैं और विक्टिम के फेस पर भी मास्क नहीं है, और आपके पास मान लीजिए हैंडकरचिफ है, रुमाल है, दुपट्टा है,
तो वो आप उस इंसान के मुंह पे रख सकते हैं और फिर आप मदद करिए, नॉट अ प्रॉब्लम देयर। ओके, देखिए ये अगर आप स्लाइड देख रहे हैं तो आपको दिखेगा एक इंसान ऐसे बेहोशी की हालत में बैठे हुए हैं और बाकी सारे लोग उसको देख रहे हैं। तो ये जो सब लोग देख रहे हैं वो कुछ मदद क्यों नहीं कर रहे? और इसका कारण यही है कि जो मैंने आपको अभी 2-3 कारण बताए। पहला कारण, उनको थोड़ा सा वरी है, थोड़ा सा डर लगता है कि कहीं केस हम पर ना हो जाए या कुछ प्रॉब्लम ना हो जाए, हम पर ही प्रॉब्लम ना हो जाए। और दूसरा ये कि उनको पता नहीं कि करना क्या है। देखिए ऐसे समय में हमारा इंस्टिंक्ट ये होता है कि हम इमीडिएटली, अगर मान लीजिए हम इस भीड़ में खड़े हों तो हमारा इंस्टिंक्ट पहला ये होगा कि हम फटाफट एम्बुलेंस को बुलाएं, जो बहुत ही अच्छी बात है और हम बुला भी लेते हैं। और कोई भी कारण से अगर आदमी गिरा है और आपने एम्बुलेंस बुलाया है लेकिन आपको पता नहीं है कि आप कैसे मदद करो, तो आप एम्बुलेंस का वेट करेंगे। लेकिन मैं आपको यहाँ बता देना चाहता हूँ कि अगर वो आदमी सडन कार्डियक अरेस्ट की वजह से कोलैप्स होता है तो भले ही आपने एम्बुलेंस को क्यों ना बुला लिया हो, लेकिन ये जरूरी है कि आप उसकी मदद करें। ऐसा क्यों मैं बोल रहा हूं? इसीलिए क्योंकि उस इंसान के पास टाइम नहीं होगा। कितना टाइम होगा उसके पास? 3 मिनट्स, 3 मिनट या 1 मिनट और पकड़ लीजिए, 3-4 मिनट के अंदर अंदर आदमी का ब्रेन डैमेज होता है और वो कोमा में जाता है, जो इरिवर्सिबल हो जाता है। और कभी कभी एम्बुलेंस को आने में हल्की सी देरी के चांसेस हो जाते हैं, ट्रैफिक कंडीशंस की वजह से, अदर कंडीशंस की वजह से। अगर 3 मिनट के अंदर अंदर नहीं पहुंची एम्बुलेंस तो आदमी कोमा में जाएगा। तो इसीलिए इससे पहले कि एम्बुलेंस आए आपको उसकी मदद करनी है। बस ये ध्यान रखिएगा एट दिस मोमेंट कि एवरी सिंगल मिनट आप ये सोचते हो कि मैं उसकी मदद करूं कि नहीं करूं, ये प्रॉब्लम है, शायद वो प्रॉब्लम ना हो जाए। उतने में उस इंसान की जान 10% से जा रही है। तो अगर आपने 10 मिनट सिर्फ सोचने में लगाया तो वो आदमी कंप्लीटली ही विल डाई। ओके, ये स्लाइड में आपको 3 इंसान दिखेंगे। देखिए आपने इनको जरूर पहचान भी लिया होगा। पहले है क्रिश्चियन एरिक्सन, फुटबॉलर, जो आपने हाल ही में इनकी न्यूज सुनी होगी। ये फुटबॉल खेलते खेलते कोलैप्स हो गए थे, जिनको CPR दिया गया था और वो आज जीवित हैं, अच्छे कंडीशन में हैं। दूसरे रीमा लागू जी और डॉक्टर कलाम साहब, इनको भी आपने पहचान लिया होगा। रीमा लागू जी को आपने जरूर टीवी में देखा होगा, मूवीज में देखा होगा, शी वाज एन एक्टर। और डॉक्टर कलाम साहब ऑफ कोर्स हमारे फॉर्मर प्रेसिडेंट थे कंट्री के। अब रीमा लागू जी और डॉक्टर कलाम साहब हमारे बीच में नहीं हैं। अब तीनों को ही सडन कार्डियक अरेस्ट हुआ था। क्रिश्चियन एरिक्सन बहुत ही लकी हैं कि वो, उनकी जान बच गई है। लेकिन मुझे आपको ये स्लाइड दिखाने का एक मकसद है, और वो मकसद आपको बताने के पहले मैं चाहता हूं कि आप इनकी उम्र पे गौर करिए। देखिए क्रिश्चियन एरिक्सन को देखिए, वो यंग है। रीमा लागू जी को देखिए, थोड़ी सी एल्डर है। डॉक्टर कलाम साहब ऑफ कोर्स द एल्डेस्ट ऑफ द 3। नाउ मेरा पॉइंट ये है कि सडन कार्डियक अरेस्ट एक ऐसी चीज है जो कभी भी किसी के साथ भी हो सकती है, उसमें उम्र का कोई भी लेना देना नहीं होता है। अगर आप ये सोचेंगे कि सडन कार्डियक अरेस्ट सुनने में ही बहुत भयानक लगता है, तो हो सकता है ये उनको हो जो 70-80 क्रॉस कर गए हैं। ऐसा नहीं है, ये बच्चों तक को भी होता है। तो पॉइंट ये है कि हर एक इंसान को आना चाहिए कि वो एक दूसरे की मदद कैसे करें। और इट्स नॉट जस्ट रिगार्डलेस एज, ये रिगार्डलेस जेंडर भी है, यानी कि मैन वुमेन किसी को भी हो सकता है। एंड इफ यू रिकॉग्नाइज अदर जेंडर्स को भी हो सकता है। और ऑल्सो इट्स रिगार्डलेस फिटनेस लेवल्स, जो मैडम ने एक्चुअली अभी भी कहा था बीच में जब वो अपना स्पीच दे रही थी। तो अगर एक हेल्दी इंसान है जो रोज जिम करता है और जॉगिंग करता है, उसको भी हो सकता है। तो देयर इज नो एज दैट इज एग्जेम्प्ट फ्रॉम इट फ्रॉम नॉट हैपनिंग। ठीक है, देखिए ये स्लाइड बहुत इंपॉर्टेंट है। ये स्लाइड है द डिफरेंशिएशन बिटवीन हार्ट अटैक एंड कार्डियक अरेस्ट। मैं आपको हल्के में बता देता हूँ, यानी कि ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा, ताकि आपको क्लियरली समझ में आ जाए कि एग्जैक्टली आदमी के अंदर प्रॉब्लम क्या हो रही है, ताकि आप उसको उस तरीके से मदद कर सकें। तो मैं हार्ट अटैक से शुरुआत करता हूँ। देखिए हार्ट हमारा जो होता है वो एक मसल है। ठीक है, आपकी बॉडी में बहुत सारे मसल्स हैं, उनमें से हार्ट भी एक है। अब अगर मैं आपको अभी पूछूं कि हार्ट का मेन फंक्शन क्या होता है, तो आप मुझे इमीडिएटली बोलेंगे कि हार्ट का फंक्शन होता है कि इट सप्लाइज ब्लड ऑल ओवर द बॉडी, जो सच है। लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि ये हार्ट
का जो ब्लड सप्लाई करता है वो बॉडी में तो सप्लाई करता ही है, लेकिन हार्ट में खुद भी ब्लड जाता है। और वो कैसे जाता है? आर्टरीज के जरिए। अब आर्टरीज में प्रॉब्लम क्या होता है कि उसमें ब्लॉकेजेस फॉर्म होना शुरू हो जाते हैं। आपने ब्लॉकेजेस का नाम जरूर सुना होगा डॉक्टर्स के मुंह से कि इस इंसान को 70% ब्लॉकेज है, 80% ब्लॉकेज है, एक्सेट्रा। अब ब्लॉकेजेस प्रॉब्लम क्या क्रिएट करते हैं? वो ब्लड सप्लाई रोकते हैं। तो जितना बड़ा ब्लॉकेज उतना ज्यादा सप्लाई ऑफ ब्लड रुक जाता है। सो एट अ पॉइंट ऑफ टाइम 100% ब्लॉकेज होने की वजह से ब्लड बिल्कुल भी पास नहीं होता है, जिसकी वजह से ट्रबल होने लगते हैं, जिसकी वजह से हार्ट में भी ब्लड पास नहीं होता, जिसकी वजह से हार्ट के मसल्स और टिश्यूज डाई आउट हो जाते हैं, और इसी को कहते हैं हार्ट अटैक। मैं आपको इसके सिम्टम्स बता देता हूँ। देखिए, अगर मान लीजिए कोई इंसान है, उसको हो रहा है, आप उसको देख रहे हैं, तो आप क्या देखेंगे उसके अंदर? उसको बहुत ज्यादा चेस्ट पेन होने वाला है, यानी कि अक्यूट चेस्ट पेन, मिडल ऑफ द चेस्ट। आप ऑब्जर्व करोगे कि उसको बहुत ज्यादा वीकनेस हो गई है। आप उसमें बैक पेन ऑब्जर्व कर सकते हो, लेफ्ट शोल्डर पेन ऑब्जर्व कर सकते हैं, आप जॉ क्लैंपिंग ऑब्जर्व कर सकते हैं, और आप देखेंगे कि वो जो भी कर रहा है वो वहीं पे एक ही जगह पे बैठ जाएगा और उसको सांस लेने में बहुत ज्यादा तकलीफ होगी। तो अगर आपने कभी भी किसी इंसान को इन सिम्टम्स के साथ देखा तो प्लीज उनको इमीडिएटली हॉस्पिटल रश करिए। आप सोचेंगे मैं बड़ी ऑब्वियस चीज बोल रहा हूँ कि ऑब्वियसली रश तो करना ही है, लेकिन क्या होता है कि क्योंकि लोगों को पता नहीं होता सिम्टम्स क्या है हार्ट अटैक के, उनको लगता है कि शायद ये गैस प्रॉब्लम है या शायद ये इंडिजेशन प्रॉब्लम है। तो एडवाइस क्या करते हैं कि आप 5 मिनट के लिए बैठिए, मैं आपको पानी ला के देता हूँ, पानी में इनो डाल देता हूँ, आप ठीक हो जाओगे। बट लेकिन आप प्लीज ऐसा मत करिएगा, आप चांस मत लीजिएगा, इमीडिएटली रश दैट पर्सन टू द हॉस्पिटल। ओके, चलिए मैं कार्डियक अरेस्ट के बारे में बताता हूँ, जिसके बारे में हम आज बात करने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए, कार्डियक अरेस्ट हार्ट अटैक से टोटली डिफरेंट होता है। इनफैक्ट ये उन वजह से भी नहीं होता है जिन वजह से हार्ट अटैक होता है, यानी कि ब्लॉक्ड आर्टरीज एक्सेट्रा, उसका कुछ लेना देना नहीं है। तो क्या है, हम समझ लेते हैं। देखिए, एक अडल्ट का हार्ट, एक अडल्ट का रेस्टिंग हार्ट का एक रिदम होता है। आवर हार्ट बीट्स विद अ सर्टेन रिदम। अब ये रिदम क्या होती है? बिटवीन 60 बीट्स पर मिनट टू 100 बीट्स पर मिनट। इस रिदम में हमारा हार्ट बीट करता है, पीप 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 पीप। अब अगर मान लीजिए इस इंसान का एक्सीडेंट हो गया या फिर इसको बहुत जोर से बिजली का करंट लगा एक्सेट्रा, तो हार्ट क्या है, उतना प्रेशर ले नहीं पाता है, जिसकी वजह से जो मैंने आपको अभी रिदम बताया बिटवीन 60 टू 100, ये कंप्लीटली केओटिक हो जाता है, हे वायर हो जाता है। यानी कि जहां पे हार्ट बीट करना चाहिए था ऐसे, अब वो बीट कर रहा है ऐसे, लिटरली ऐसे। इसको कहते हैं फिब्रिलेशन। तो हार्ट फिब्रिलेट करता है, इसीलिए हार्ट को खुद पता नहीं होता कि क्या हो रहा है, दैट्स व्हाई इट स्टॉप्स। और इसी प्रोसेस को जहां पे हार्ट फिब्रिलेट करता है देयरफॉर स्टॉप हो जाता है, इसी को कहते हैं कार्डियक अरेस्ट। और ये सडनली होता है, इसीलिए देखिए हार्ट अटैक को हार्ट अटैक कहा जाता है और कार्डियक अरेस्ट को सडन कार्डियक अरेस्ट कहा जाता है। ठीक है, अब मैं आपको बता देता हूं कि क्या देखोगे आप उस इंसान के अंदर जिसको कार्डियक अरेस्ट हुआ है। ओके, मतलब मान लीजिए आपके सामने ही है वो इंसान, तो क्या आप देखेंगे? आप वो आदमी इमीडिएटली फ्लोर पे कोलैप्स हो जाने वाला है। ओके, इज गोइंग टू फॉल ऑन द फ्लोर। अब आपके सामने ही गिरा है तो आप थोड़े से तो कंसर्न हो जाओगे, आप बोलोगे भाई साहब क्या हुआ आपको, तो आप उसका रिस्पॉन्स आपको चाहिए, तो आप उसको ऐसे कुछ हिलाओगे, टैप करोगे शोल्डर पे, हेलो सर आर यू ओके, हेलो। लेकिन आपको उसका रिस्पॉन्स नहीं मिलने वाला है। फिर आप सोचोगे ठीक है, मैं इसकी ब्रीदिंग चेक कर लेता हूँ। अब ब्रीदिंग कैसे चेक करेंगे? जो कॉमन अंडरस्टैंडिंग है ब्रीदिंग की वो ये है कि आप अपना फिंगर उसके नोज के अंदर डाल के आप देखेंगे कि ब्रीदिंग हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अगर आपने ऐसे किया तो आपको पता चलेगा कि ब्रीदिंग भी नहीं हो रहा है। फिर आप सोचोगे मैं एक लास्ट चीज ट्राई कर लेता हूँ, मैं पल्स चेक कर लेता हूँ या कर लेती हूँ। तो आप पल्स चेक करोगे कैसे? आपने डॉक्टर्स को करते हुए देखा होगा, देखिए इस तरह से या फिर इस तरह से। अगर आप ऐसे करोगे तो आपको पता चलेगा कि पल्स भी नहीं है। उस समय आप पैनिक हो जाने वाले हो, क्योंकि आपको तभी क्वाइट ऑब्वियसली दिखेगा कि आदमी कोलैप्स भी हो गया है, अनकॉन्शियस भी हो गया है, रिस्पॉन्सिव भी नहीं है, ब्रीदिंग भी नहीं है और पल्स भी नहीं है। तो आपका ऑब्वियस कंक्लूजन क्या होने वाला है? उस समय आप सोचने वाले हो कि आदमी अब मर गया है, एज इन ही इज डेड, ही इज नो मोर। आपका ये लॉजिकल कंक्लूजन हो सकता है।
लेकिन मैं आपको आज बता रहा हूं कि कभी आपने ऐसे सिम्टम्स या फिर ये चीज एग्जैक्टली देखा एक इंसान के अंदर जो रिस्पॉन्सिव भी नहीं है, ब्रीदिंग भी नहीं है, पल्स भी नहीं है, तो आप ये गलती मत करिएगा सोचने की कि आदमी गया, क्योंकि वो सच नहीं होने वाला है। सच ये होने वाला है कि वो आदमी अब कार्डियक अरेस्ट में जा चुका है और उसको आपकी इमीडिएट मदद की जरूरत है। एम्बुलेंस तो आपने बुला लिया, लेकिन आपकी भी जरूरत है मदद की। अब मैंने आपको पहले स्लाइड में बताया था कि आपको एम्बुलेंस आने के पहले उसकी मदद करनी है 3 मिनट के अंदर अंदर। मैंने आपको ऐसा क्यों बताया था, मैं आपको अभी बता देता हूँ। देखिए, हमारे बॉडी में एक बहुत सेंसिटिव ऑर्गन होता है जिसको कहते हैं ब्रेन। ब्रेन को कंटिन्यूअसली ब्लड सप्लाई की जरूरत होती है। अब अगर कार्डियक अरेस्ट हो चुका है, इसका मतलब हार्ट का कोई भी फंक्शन नहीं चल रहा है, यानी कि ब्लड पास नहीं हो रहा है। और अगर ब्रेन को 3 मिनट तक कंटिन्यूअसली ब्लड सप्लाई नहीं मिलता है तो ब्रेन डैमेज कंडीशन में जाता है। और कुछ सेकंड और पकड़ लीजिए, 1 मिनट और पकड़ लीजिए, तो ब्रेन के सारे फंक्शंस शट हो जाते हैं। और इसी शटिंग ऑफ द फंक्शंस ऑफ द ब्रेन इज नोन एज कोमा, और ये इरिवर्सिबल हो जाता है। और आपको पता ही है कि एक बार आदमी कोमा में गया तो उसको वापस लाना बहुत बहुत डिफिकल्ट होता है। इसीलिए ये जरूरी है कि आप उसको इमीडिएटली मदद करें। आप सोचे नहीं ज्यादा, लेकिन एक्शन में आ जाए, ठीक है। लेकिन अभी तक मैंने आपको बताया है कि प्रॉब्लम क्या है, अभी तक हमने आपको बताया नहीं कि सॉल्यूशन क्या है। तो अब हम आपको बताते हैं 4 वेरी सिंपल स्टेप्स में कि आप क्या कर सकते हैं ताकि आदमी का ब्रेन तो बचे लेकिन उसकी जान भी बचे। ओके, तो अब तक हमने समझ लिया है कि हार्ट अटैक और कार्डियक अरेस्ट 2 अलग चीज है। अब हम सीखने वाले हैं कि जो आपके सामने गिरा है उसकी मदद हम कैसे करेंगे 4 सिंपल स्टेप्स में। तो पहले स्टेप में हम चलते हैं। पहले स्टेप में हमको पहचानना है कि जो आपके सामने गिरा है वो कार्डियक अरेस्ट की वजह से गिरा है या और कोई वजह से गिरा है। तो हम वो कैसे करेंगे? So Anand, can we have the presentation of for a while? Yes. So अगर आपके सामने गिरा है कोई, तो या तो साइडवेज ऐसे गिरा होगा या तो ऐसे बैठे बैठे गिरा होगा जैसे आपने स्लाइड में देखा है। आपको पहले उसको जमीन पे लेटाना है, एकदम सीधा। एक बार आपने उसको जमीन पे सीधा लेटा दिया, आपको उसके दोनों कंधों पे थोड़ा जोर से मार के पूछना है कि हेलो आप ठीक हो कि नहीं। आप चेक करो ये आदमी होश में है कि नहीं। तो ऐसे, हेलो क्या आप ठीक हो, भाई साहब क्या आप ठीक हो। तो आप देख सकते हो आनंद और मुझे ऐसे, हेलो क्या आप ठीक हो भाई साहब। यहाँ पे आपको प्यार मोहब्बत नहीं दिखाना है, आपको थोड़ा जोर से मारना है, थोड़ा जोर से बोलना भी है। सेंस ऑफ टच से, सेंस ऑफ साउंड से, दोनों तरफ से हम चेक करें कि ये आदमी होश में है कि नहीं। तो एक बार और देख लीजिए, हेलो क्या आप ठीक हो। आदमी ने कुछ मूवमेंट नहीं किया या कुछ जवाब नहीं दिया, मतलब ये आदमी बेहोश है। आपने उतना पहचान लिया। फिर आपको चेक करना है कि इसकी सांसें चल रही कि नहीं। तो जैसे आनंद ने आपको बताया, बहुत सारे तरीके हैं जैसे हम चेक कर सकते हैं। जैसे फिंगर अंडर द नोज रख सकते हैं, यहाँ पे चेक कर सकते हैं, पल्स चेक कर सकते हैं। इतने सारे तरीके हैं। ये सारे तरीके गलत नहीं है, सही है। लेकिन हम आपको सबसे फास्टेस्ट तरीका आज सिखाने वाले हैं चेक करने के लिए कि अगर किसी की सांसें चल रही है कि नहीं। और वो है आपका हाथ यहाँ एब्डोमेन पे रख के, मतलब जो आदमी लेटा है आप ऐसे हाथ रखोगे, थोड़ा प्रेस करोगे और चेक करोगे 10 सेकंड तक कि ये ऊपर नीचे जा रहा है कि नहीं। तो जैसे आप लोग सब हो, हम जानते हैं कि हम आपको देख नहीं सकते, लेकिन आप थोड़ा सा सीधा बैठ जाएंगे हमारे साथ करेंगे तो आपको भी अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो थोड़ा सीधा बैठ जाइए सब लोग। आपका हाथ रखिए यहाँ पे एब्डोमेन पे, देखिए छाती पे नहीं रखना है, यहाँ एब्डोमेन पे रखना है। थोड़ा प्रेस करेंगे आप, सांस लीजिए अंदर, फिर सांस छोड़िए, फिर से सांस लीजिए, सांस छोड़िए। यहाँ पे आपको एक मूवमेंट समझ में आएगा अपने खुद के बॉडी पे। तो ऐसे आपको यहाँ हाथ रखना है जो कोलैप्स हुआ है, 10 सेकंड तक प्रेस करना है, चेक करना है कि ऊपर नीचे जा रहा है, मतलब ब्रीदिंग हो रही है कि नहीं। अगर ब्रीदिंग हो रही है, सांसें चल रही है उसकी, तो उसको जल्दी से हॉस्पिटल ले जाओ। ये और कोई वजह से गिरा है। लेकिन अगर आपने चेक कर लिया कि होश नहीं है और सांसें भी बंद है, मतलब आपने सडन कार्डियक अरेस्ट पहचान लिया। तो हमारे कीवर्ड्स क्या है यहाँ पे? होश नहीं है, सांसें भी बंद है, मतलब ये आदमी को सडन कार्डियक अरेस्ट हुआ है। समझो उसको मिर्गी हुआ था या शुगर लेवल ड्रॉप हुआ था या दवाई ज्यादा ली थी, वो भले होश में नहीं रहता लेकिन उसकी सांसें चलती रहती। लेकिन ये सिचुएशन में होश नहीं है
और सांसें भी बंद है, मतलब इसको सडन कार्डियक अरेस्ट हुआ है। और जब मैं बोल रही हूँ कि होश नहीं है, सांसें बंद है, उसका मतलब ये नहीं कि आदमी जा चुका है। आदमी सडन कार्डियक अरेस्ट में है, उसके पास 10-15 मिनट का समय है और आपको उसकी मदद करनी है। तो पहला स्टेप, होश नहीं है, सांसें भी बंद है, आपने पहचान लिया सडन कार्डियक अरेस्ट। यस आनंद, यू वुड लाइक टू ऐड समथिंग? या आई जस्ट से वन थिंग, देखिए हमसे कई बार पूछा जाता है कि कैसे मालूम पड़ेगा कि अगर एक आदमी कोलैप्स होता है तो वो हार्ट अटैक हुआ है कि सडन कार्डियक अरेस्ट हुआ है। तो देखिए उसका बहुत आसान तरीका है, और वो तरीका है टू चेक द ब्रीदिंग। तो आज से आप ये जरूर करिएगा, अगर कभी ऐसा इंसिडेंट हुआ और आप देख रहे हैं कोई आदमी कोलैप्स है, तो आप दो चीज जरूर करिएगा जो हमने आपको बताया। टैपिंग ऑन द शोल्डर जरूर करिएगा रिस्पॉन्स के लिए, और उसका ब्रीदिंग चेक करिएगा। देखिए अगर वो बेहोश है लेकिन वो ब्रीथ कर रहा है तो वो कार्डियक अरेस्ट नहीं है, लेकिन वो बेहोश है और ब्रीदिंग भी नहीं है तो आप मान के चलिए कार्डियक अरेस्ट है। और जो हम अभी आपको बताने वाले हैं तरीका, वो आप शुरू कर दीजिए। ओके, I'm starting the screen now. Yeah. So as you can see on the slide, first step. Yes. Yeah. होश नहीं है, सांसें भी बंद है, हमने पहचान लिया सडन कार्डियक अरेस्ट। अब हम चलते हैं हमारे दूसरे स्टेप में। दूसरे स्टेप में हमको बुलाना है एम्बुलेंस। आप डॉक्टर नहीं हो, और अगर आप डॉक्टर हो भी तो आप आउट ऑफ हॉस्पिटल हो, ये कोलैप्स रास्ते में हुआ है या मॉल में हुआ है या बीच पे हुआ है, तो आपको एम्बुलेंस की जरूरत पड़ेगी। सो दूसरे स्टेप में आप कॉल करोगे एम्बुलेंस। अब प्लीज आप सब अपने फोन में आज ही इमरजेंसी नंबर सेव कीजिए। मतलब जो हॉस्पिटल्स आपके आसपास है, जहां आप रहते हो और जहां आप ज्यादा टाइम दिन में बिताते हो, वहां के आसपास के हॉस्पिटल प्लीज आज ही आपके फोन में सेव कीजिए, क्योंकि इमरजेंसी कभी भी किसी वक्त हो सकता है। वो टाइम पे आप सोचोगे काश मैंने नंबर सेव किया होता, आज मेरा समय बचाता है। ऑल्सो हमारे मुंबई शहर में इमरजेंसी नंबर, गवर्नमेंट सर्विस नंबर है 108, जो आप डायरेक्टली डायल कर सकते हो आपके फोन से। तो ये नंबर भी जरूर सेव कीजिए कि कभी कोई नंबर किसी का हॉस्पिटल का लगा नहीं, किसी ने उठाया नहीं, तो आपके पास दूसरा नंबर रेडी है। अब जब आप कॉल करोगे कार्डियक एम्बुलेंस, तब आप बोलोगे प्लीज सेंड मी अ कार्डियक एम्बुलेंस, क्योंकि वो टाइम पे बहुत केओस है, पैनिक सिचुएशन है, आदमी कोलैप्स हुआ है। आप जल्दी जल्दी फोन करके बोलोगे जल्दी से एम्बुलेंस भेजो, तब वार्ड बॉय आ जाएगा छोटा सा एम्बुलेंस में स्ट्रेचर लेके। तो यहाँ पे आपको स्पेसिफाई करना है प्लीज मुझे कार्डियक एम्बुलेंस भेजिए, क्योंकि हर कार्डियक एम्बुलेंस में डॉक्टर भी रहता है और ये वाली मशीन भी रहती है। तो ये सिचुएशन में आपको कार्डियक एम्बुलेंस की जरूरत है। और ये अगर ये मशीन, ये वाली जो एडी मशीन है, अगर आपको पता है कि ये आसपास आपके किधर है, तो किसी को बोलिए जाके जल्दी से पास की एडी मशीन लेके आई, क्योंकि ये एयरपोर्ट्स पे बहुत सारी दिखेंगी आपको, कहीं कहीं मॉल्स में भी है, और हमारे प्रोजेक्ट के वजह से हमने जगह जगह लगाए भी है। तो अगर ये मशीन आपके पास है तो आप किसी को बोलिए जाके ये जगह से एडी मशीन लेके आए। तो दूसरे स्टेप में हम बुलाएंगे कार्डियक एम्बुलेंस और एईडी मशीन अगर आपके आसपास है तो। कैसा लगा? मैं ज्यादा ऐड ना करते हुए दो तीन चीज फटाफट बोल देता हूँ, और वो ये है कि 108 जो नंबर है वो हमारे देश में करीब करीब 17 से 18 स्टेट्स में प्रेवेलेंट है, महाराष्ट्र को इंक्लूडिंग। तो ये अगर आप कोई दूसरे स्टेट में है और वहां पे ये हादसा होता है, वहां पे 108 प्रेवेलेंट, यू कैन ऑलवेज गिव इट अ ट्राई। सेकंड, हमारा इंस्टिंक्ट होता है कि हम एम्बुलेंस को बुलाएं, लेकिन आप ध्यान रखिएगा अगर आपको ये पता चल गया है कि जो प्रॉब्लम है वो हार्ट का है, यानी कि हार्ट अटैक या कार्डियक अरेस्ट का है, तो ध्यान रखिए आप कार्डियक एम्बुलेंस ये नाम लीजिए जब आप फोन कर रहे हैं, क्योंकि जैसे ही आप ये एम्बुलेंस का नाम लेंगे तो उनको समझ में आएगा आप एग्जैक्टली बोल क्या रहे हैं। उनको आपके बोलने के पहले उनको समझ में आ जाएगा कि ये हार्ट का प्रॉब्लम है, therefore they're going to send the cardiac ambulance immediately. Okay, all right, so we'll go to step 3. Suman, अब हम चलते हैं हमारे तीसरे स्टेप में। तीसरे स्टेप में हम सीखेंगे CPR। तो प्रेजेंटेशन 2 मिनट के लिए ऑफ कर दीजिए आनंद प्लीज। तो पहले हम आपको दिखा दें मैनेकिन पे आपको ये CPR देना कहाँ है। तो एक इमेजिनरी क्रॉस सोचिए बॉडी पे, 2 निपल के बीच में जो सेंटर पॉइंट है यहाँ पे आप दोगे कार्डियक मसाज या CPR। तो अगर खुद का बॉडी आप फील करोगे तो ऊपर से एक हार्ड स्टर्नम है, फिर एक सॉफ्ट पोर्शन आ जाता है, उसको लोअर स्टर्नम बोलते हैं। तो एक यही पॉइंट है 2 निपल के बीच में जहां पे आप दोगे चेस्ट कंप्रेशन। अब ये पॉइंट एक ही है, अगर आदमी है या औरत है पॉइंट वही है, ठीक है।
अब हम आपको दिखा रहे हैं हैंड पोजीशन, आप हाथ कैसे रखोगे। तो प्लीज अगेन आप प्लीज हमारे साथ करिए ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। तो आपका जो डोमिनेंट हैंड है, मतलब आप राइटी हो तो राइट हैंड, लेफ्टी हो तो लेफ्ट हैंड, वो हाथ आप ऐसे सीधा रखिए, थोड़ा आपके डिवाइस से पीछे चले जाइए ताकि आपका पूरा हाथ सीधा रह जाए, एल्बो सीधा होना चाहिए, हाथ एकदम ऐसे टाइट होना चाहिए। फिंगर्स आप ओपन करोगे और ऊपर से दूसरा हाथ से आप ऐसे इंटरलॉक करोगे। देखिए ये पोजीशन है, आप देख सकते हो आनंद और मुझे, और आपका भी हाथ ऐसे ही होना चाहिए, एकदम टाइट होना चाहिए, दोनों एल्बो सीधे होने चाहिए। काश हम आपको देख सकते हैं, लेकिन फिर भी आप ये जरूर कीजिए, ठीक है। अब इस पोजीशन को बोलते हैं हील ऑफ द पाम। ये हील ऑफ द पाम, ये सेंटर पॉइंट जो आपको दिखाया था दो निपल के बीच में, ऐसे आएगा। और कैसे करना है चेस्ट कंप्रेशन या कार्डियक मसाज, अभी आपको हम छोटा सा वीडियो दिखाते हैं, वो थोड़ा ध्यान से देखिए। अब जैसे आपको दिख रहा है स्क्रीन पे, आदमी को हमने नीचे लेटा दिया, हैंड्स ऐसे ही इंटरलॉक किया जैसे आपको अभी हमने बताया है, सेंटर ऑफ द चेस्ट में हील ऑफ द पाम है। अब ये कंप्रेशन आपको करना है या तो लेफ्ट हैंड साइड या तो राइट हैंड साइड आदमी के, सर की तरफ से आप नहीं करोगे, पैर की तरफ से आप नहीं करोगे। तो आपने पोजीशन ले लिया, अब सीखते हैं कैसे हम करेंगे सीपीआर। Now it's your turn to practice. First, get into position. Place the heel of one hand on the center of the chest. Put the heel of your other hand on top of the first. Follow along with the drum beat. Let's begin. Push straight down, hard. Push down at least 2 inches. Push at the rate of 100 to 120 compressions per minute. After each compression, let the chest come back up to its normal position. Keep your compressions going until the drum beat stops. देखिए वो कैसे कर रहा है, हैंड्स इंटरलॉक करके पूरा प्रेशर शोल्डर से आ रहा है, और चेस्ट को वो नीचे प्रेस कर रहा है, ऊपर आ रहा है, फिर से नीचे प्रेस कर रहा है। ये हार्ड और फास्ट कर रहा है, रुक नहीं रहा है, कंटिन्यूसली ये कर रहा है। आपको भी ऐसे ही करना है इमरजेंसी सिचुएशन में, तो इसको थोड़ा ध्यान से देखिए। अब जैसे हमने देखा वीडियो में हील ऑफ द पाम, सेंटर ऑफ द चेस्ट, और हमने ये कंप्रेशन स्टार्ट किया। ये कंप्रेशन आपको करने हैं 100 से 120 1 मिनट में, और 5 सेंटीमीटर नीचे जाके ऊपर आना है। ये रिदम है। ये रिदम ऐसे क्यों है 100 से 120? क्योंकि हमारा दिल भी ऐसे धड़कता है, 1 2 3 4, तो वही रिदम से हमको कंप्रेशन करने हैं, 1 2 3 4। तो एग्जैक्टली हम कर क्या रहे, उसका दिल बंद हो चुका है, इस वजह से खून उसके पूरे बॉडी में नहीं जा रहा है और ब्रेन तक भी नहीं गया। 3 मिनट में तो उसका ब्रेन डैमेज हो जाएगा, कोमा में चला जाएगा, 10 मिनट में आदमी खत्म। ये हम नहीं चाहते। सो ये जो हमारा हील ऑफ द पाम है, ये उसका दिल बन जाता है। तो जैसे हमने हाथ रख दिया, कंप्रेस करके जब हम ऊपर आते, छोड़ते, जैसे ऊपर और नीचे आते, खून उसके दिल से उसके ब्रेन तक पहुंचते रहता है, थोड़ा क्वांटिटीज में, ताकि उसका ब्रेन जिंदा रहे। तो हर बार आप नीचे जाके ऊपर आते हो, नीचे जाके ऊपर आते हो, ब्लड उसके ब्रेन तक पहुंचते रहता है। देखिए कितना जरूरी है, लेकिन ये करना इजी नहीं है। जैसे आपने देखा वीडियो में, आदमी नीचे है, आप पूरा प्रेशर लगा रहे हैं शोल्डर पे, जितने भी आप फिट हो, आप थोड़ा कंप्रेशन के बाद थक जाओगे। तो क्या करें ऐसे सिचुएशन में? आप थके हो तो आप ठीक से कंप्रेशन नहीं कर पाओगे, तो उसको फिर फायदा नहीं है। हमारे देश में एक चीज अच्छी है, कोई कोलैप्स हो गया तो 10-20 लोग आके खड़े हो जाएंगे, फ्री के एडवाइस देंगे, जूता सुंगाओ, पानी पिलाओ। आपको बोलना है नहीं, मैंने सीखा है। आप ये स्टार्ट करो कंप्रेशन, और सबको बोलो देखो मैं कैसे कर रहा हूँ। जैसे आप थोड़े थके फील करो, आपके सामने जो आदमी खड़ा है उनको बोल दीजिए अभी आप टर्न लेके कीजिए, फिर आप टर्न लेके कीजिए, टर्न बाय टर्न उनको करने दीजिए। जब दूसरा आदमी कर रहा है तभी आप चेक करो वो ठीक से कर रहा है, सेंटर ऑफ द चेस्ट कर रहा है, कंप्रेशन कर रहा है। आप एम्बुलेंस को भी कॉल कर सकते हो, लेकिन टर्न बाय टर्न करना जरूरी है। लेकिन टर्न बाय टर्न भी आप कब तक करोगे? आपको टर्न बाय टर्न कंटिन्यू रखना है जब तक एक उसको होश आ जाता है, मतलब आंख खोल दिया, सांसें चालू हो गई, तब आप कंप्रेशन छोड़ दोगे। दूसरी चीज, आपका कार्डियक एम्बुलेंस आ गया, तब आप उसको डॉक्टर के हवाले करोगे, कंप्रेशन छोड़ दोगे। या तीसरी चीज, अगर कोई आपको एडी मशीन लाके दिया तभी आप पैच लगाने के लिए रोक दोगे, नहीं तो आपको ये कंटिन्यू रखना है। फिर शायद आपके मन में ये सवाल आए कि एम्बुलेंस शायद आधा घंटा लग जाए आने के लिए, तब तक क्या हमको कंप्रेशन करना जरूरी है?
तो आंसर यही है कि आपको ये करना ही है, कंटिन्यू करना है, आपको रोकना नहीं है। आपने हाथ रोक दिया तो आदमी खत्म। डॉक्टर्स ने 1-1.5 घंटा करके भी आदमी को बचाया है कंप्रेशन करके। तो आप कोई नहीं हो सोचने के लिए अभी तो 15 मिनट हम कर रहे हैं कंप्रेशन, अभी कुछ फायदा नहीं होगा। नहीं, एक चीज याद रखिए, सडन कार्डियक अरेस्ट में आदमी ऑलमोस्ट जा चुका है। आप और कुछ बुरा नहीं कर सकते, आप खाली उसको वापस जिंदगी दे सकते हो, ये सब करके जो आज आप सीख रहे हो। तो चेस्ट कंप्रेशन सेंटर ऑफ द चेस्ट में 100 से 120 पर मिनट 5 सेंटीमीटर नीचे जाके ऊपर आना है, टर्न बाय टर्न करना है जब तक उसको होश आ जाए या आपका कार्डियक एम्बुलेंस आ जाए। यस आनंद। देखिए, अभी अभी आपने सीपीआर का डेमो देखा। देयर इज अ पॉसिबिलिटी शायद आपने पहली बार सीपीआर होते हुए देखा एक डेमो में। इट्स अनफॉर्चुनेट कि हम आपके सामने नहीं है आज, वरना हम आपको मैनिक्विन में जरूर दिखाते। लेकिन क्या होता है कि हमने अगर कंप्यूटर पे एक डेमो देखा है तो हम ये सोचते हैं कि हमने देख तो लिया, लेकिन अगर असली जिंदगी में हमारे सामने ये हादसा हुआ तो क्या हम कर पाएंगे? तो देयर इज अ पॉसिबिलिटी आप शायद हेजिटेट करें, या कोई भी इंसान जो होगा वो हेजिटेट करेगा थोड़ा, क्योंकि जिंदगी में कभी ऐसा किया नहीं है और पहली बार करना पड़े तो ऑब्वियसली थोड़ा सा हेजिटेशन तो हो जाता है। तो मैं आपको 2 बहुत स्ट्रॉन्ग रीजंस बताना चाहता हूँ सीपीआर करने के। पहला स्ट्रॉन्ग रीजन, देखिए ये ध्यान रखिए कि ये हादसा हॉस्पिटल के पास नहीं है मान लीजिए, या ऐसी जगह है जो थोड़ी सी दूर है, तो आप क्या करोगे? तो उस समय आप उस इंसान को पानी नहीं पिला सकते, आप उस इंसान को खाना नहीं दे सकते, आप उस इंसान को मेडिसिन नहीं दे सकते, और क्योंकि आप डॉक्टर नहीं हैं आप कोई मेडिसिन उनके बॉडी में इंजेक्ट नहीं कर सकते। तो आपके पास ऑप्शन क्या बचा? एक ही ऑप्शन बचा, और वो सबसे अच्छा ऑप्शन है, और उसको कहते हैं सीपीआर। आप सीपीआर करोगे, उसकी जान बचेगी। सेकेंड स्ट्रॉन्ग रीजन ये है कि सीपीआर करना डिफिकल्ट है ही नहीं। हम सोचते हैं आई डोंट नो, सीपीआर करना शायद बहुत डिफिकल्ट होगा, ऐसा नहीं है। आप 100 to 120 बीट्स पर मिनट पे करेंगे, यानी कि एवरी सिंगल मिनट, और आप काउंट कर सकते हैं जब आप सीपीआर कर रहे हो। सो 1 2 3 4 इस तरह से, और 5 सेंटीमीटर्स डीप जाएंगे, उतना काफी है उसकी जान बचाने के लिए। आप ऐसा मत सोचिए कि मैं नहीं कर पाऊंगा, आप जरूर कर पाएंगे, हमको आप पर कॉन्फिडेंस है। अच्छा, मैं 2-3 चीजें बता देता हूँ सीपीआर के बारे में। सीपीआर इज कार्डियो पल्मोनरी रिससिटेशन। कार्डियो मतलब कार्डियोवैस्कुलर, आपके दिल की बात है। पल्मोनरी मीन्स समथिंग टू डू विद द लंग्स, और रिससिटेशन का मतलब है रिवाइवल। तो आप सीपीआर करके एक आदमी को रिवाइव कर रहे हो, इसीलिए उसको सीपीआर का नाम दिया गया है। देखिए, हमने जब भी सीपीआर के बारे में सुना है और पढ़ा है और टीवी में देखा होगा, मूवी में देखा होगा, तो हमने ऑब्जर्व किया है कि माउथ टू माउथ दिया जाता है, यानी मुंह से सांस देने वाली प्रक्रिया सीपीआर के साथ दी जाती है। लेकिन आपको मैं बताना चाहता हूं कि आपको माउथ टू माउथ देने की कोई भी जरूरत नहीं है। आप सिर्फ हाथ से करोगे, जैसे हमने आपको बताया, जैसे आपने डेमो में देखा, आप उतना करोगे उतना काफी है उस इंसान का ब्रेन जीवित रखने के लिए और उस इंसान खुद को जीवित रखने के लिए। ठीक है, तो आप माउथ टू माउथ का ज्यादा सोचिएगा नहीं कि मैंने नहीं किया तो शायद वो तो प्रॉब्लम नहीं है। और लास्ट चीज आपको ये बता देता हूँ सीपीआर के बारे में कि देखिए, आपने जब पता चल गया आपको कि आदमी ब्रीथ नहीं कर रहा है, रेस्पॉन्सिव नहीं है, तो कार्डियक अरेस्ट हो चुका है, तो आपने सीपीआर स्टार्ट कर दिया, विच इज अ फैंटास्टिक थिंग। लेकिन वो कौन सा पॉइंट आएगा जब आपको स्टॉप करना पड़ेगा? यानी कि मैं रिवाइवल की बात कर रहा हूँ। अगर आदमी रिवाइव हो जाता है तो आपको कैसे मालूम पड़ेगा? क्योंकि ये जरूरी नहीं है हमेशा कि आदमी उठ जाए या फिर आपको बोले ओके ना I'm ऑल राइट, ऐसा जरूरी नहीं है। तो हो सकता है कि वो उसकी सांस आ गई है लेकिन आप नहीं पहचान पाए, तो उस समय आप साइंस ऑफ लाइफ देखते रहिए, यानी फिंगर मूवमेंट्स देखते रहिए, कॉर्निया मूवमेंट्स देखते रहिए, अगर वो कुछ आवाज करते हैं वो देखते रहिए, फ्लिकरिंग ऑफ द आई मूवमेंट देखते रहिए। अगर आपने ये सारी चीजें देख ली तो आपको सीपीआर स्टॉप कर देना है इमीडिएटली, क्योंकि कंग्रेचुलेशंस, आपने सक्सेसफुली उस आदमी को रिवाइव कर दिया है। एक लास्ट चीज आपको बोल देता हूँ, प्लीज ध्यान रखिएगा सीपीआर के बारे में, और वो ये है कि सीपीआर उस पे नहीं करते हैं जो सांस ले रहा होता है। यानी कि कोई भी प्रॉब्लम होगी उसमें आप सीपीआर नहीं करोगे, आप सिर्फ कार्डियक अरेस्ट केस में ही करोगे, क्योंकि कार्डियक अरेस्ट केस में ही सांस बंद हो जाती है। ओके, और सो नाउ Sumaya, I'll start the presentation. Yes. So देखिए स्लाइड में
आदमी को हमने नीचे लेटा दिया, 100 से 120 पर मिनट हमने कंप्रेशन किया है जब तक उसको होश आ जाता है या जब तक कार्डियक एम्बुलेंस आ जाता है। अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट स्टेप में। नेक्स्ट स्टेप में हम सीखने वाले हैं AED मशीन जो है, ये मशीन हम कैसे सीखेंगे। सो आनंद, कैन वी हैव द प्रेजेंटेशन ऑफ अगेन फॉर अ व्हाइल? यस। सो इसको बोलते हैं AED, उसका फुल फॉर्म है ऑटोमेटेड एक्सटर्नल डिफिब्रिलेटर, ले लैंग्वेज में इसको शॉक मशीन बोलते हैं। अगर आप ये मशीन कोई दूसरे शेप या कलर में देखा है तो प्लीज घबराइए नहीं, अलग अलग मैन्युफैक्चरर्स के मशीन है लेकिन चलते सब एक जैसे। तो ये मशीन ऐसे दिखते हैं अंदर से, यहाँ पे एक पुल लीवर है, जैसे हमने ये लीवर पुल कर दिया वो अपने आप बताएगा आपको क्या करना है स्टेप बाय स्टेप। तो मैं ये करने वाली हूँ, अब मैं इसको बंद कर रही हूँ आपको एक्सप्लेन करने के लिए, लेकिन अगर आपने ये यूज किया तो आप इसको हमेशा ऑन रखोगे। तो जैसे मैंने खोला है, अंदर से देखिए 2 स्टिकी पैड्स हैं, एक एक पैड के ऊपर पिक्चर दिया है एरो के साथ, इसको कहाँ लगाना है बॉडी पे। तो ये बोल रहा है यहाँ पे राइट हैंड साइड कॉलर बोन के नीचे, और ये वाला बोल रहा है यहाँ पे ऑन द लेफ्ट हैंड साइड बिलो द रिब्स। देखिए बराबर से पिक्चर में दिया है, हमको पील ऑफ करके जैसे पिक्चर में दिया है हमको वैसे ही अटैच करना है बॉडी पे। तो मैं वैसे ही कर रही हूँ, देखिए बहुत सिंपल है, ऐसे ही पील ऑफ करके आपने अटैच कर लिया बॉडी पे। मैं आपको दिखा देती हूँ कैसे मैंने अटैच किया है। अब ये अटैच करना है आपको जैसे पिक्चर में दिया है, आप इसको ऐसे या ऐसे नहीं अटैच कर सकते क्योंकि हमारा दिल यहाँ पे है, थोड़ा लेफ्ट में है। तो जब शॉक जाएगा दिल के थ्रू जाना जरूरी है। आपने पैड्स ऐसे लगा दिया तो दिल के थ्रू नहीं जाएगा, तो हमने पैड्स लगा दिया। अब दूसरी इंपॉर्टेंट चीज है कि ये पैड्स हमको लगाना है ड्राई और बेयर स्किन में, मतलब अगर वाटर बॉडी से निकला है या बारिश हो रही है या पसीना ज्यादा हो रहा है तो आपको अच्छे से उसको पोंछ के लगाना है पैडल्स, क्योंकि वो बराबर से चिपकने चाहिए। दूसरी चीज बेयर स्किन है, मतलब अगर कपड़े के ऊपर आपने लगा दिया तो ये शॉक तो देगा नहीं क्योंकि इलेक्ट्रोड्स है। तो बेयर स्किन का एक ही इशू है, अगर पब्लिक प्लेस में कोई गिरा है, आदमी गिरा है तो ठीक है, आप शर्ट ऊपर कर दोगे, बटन खोल दोगे और पैच लगा दोगे, लेकिन सेम चीज औरत को भी हो सकती है। जैसे आनंद ने आपको बताया, मैन वुमेन चाइल्ड किसी को भी हो सकता है। और औरत है तो थोड़ा मॉडेस्टी बीच में आता है। 100 लोग खड़े हैं, आप जाके कपड़े निकाल रहे हो तो पब्लिक क्या बोलेगी, क्यों आप कपड़े उतार रहे हो, आप डॉक्टर थोड़ी हो, आपको कुछ आता है कि नहीं। लेकिन औरत की जान भी बचाना उतनी ही जरूरी है। तो हमारे पास छोटा सा सोल्यूशन है, अगर लेडी ने साड़ी पहना है तो आप सारी ब्लाउज एडजस्ट करके आप पैड लगा सकते हो, लेकिन अगर फुल सूट है तो आपको थोड़ा सा मुश्किल होगा। लेकिन इसके अंदर एक कैंची है, आपको दिख रही है, पेयर ऑफ सिजर्स है, आप इसको निकाल सकते हो। इतना पोर्शन कपड़े का आप काट सकते हो, इतना पोर्शन कपड़े का काट सकते हो और पैड लगा सकते हो। पूरा कपड़ा आपको निकालने की जरूरत नहीं है, तो मॉडेस्टी भी रहेगा और आप आगे जाके जान भी बचा देंगे। तो हमने पैड्स लगा दिया है ड्राई और बेयर स्किन पे। अब सुनते हैं मशीन क्या बोलती है। Place pad. No one should touch the patient. Analyzing. वो उसका दिल एनालाइज कर रहा है जो गिरा है आपके सामने। No one should touch the patient. Analyzing. Shock advised. Stay clear of patient. Press the flashing orange button now. अभी मशीन बोल रहा है ये बटन प्रेस करो, देखिए ये बटन फ्लैश हो रहा है, बोल रहा है मशीन बोल रहा है प्रेस करो flashing orange button now. शॉक देने के लिए। तो मैं ये प्रेस करने वाली हूँ। Shock now. Shock delivered. Be sure the ambulance service has been called. It is safe to touch the patient. Start CPR. तो मशीन ने क्या किया, जैसे आपने पैड्स अटैच किए पहले उसका दिल एनालाइज कर लिया। आपने तो चेक कर लिया होश नहीं है, सांसें भी बंद है, मशीन फिर से वही चेक कर रहा है। एक बार मशीन ने चेक कर लिया, फिर मशीन डिसाइड करेगा उसको शॉक की जरूरत है कि नहीं। आप नहीं डिसाइड करोगे। अगर मशीन को लगता है उसको शॉक की जरूरत नहीं है, मशीन खुद ही बोलेगा शॉक नॉट रिक्वायर्ड। लेकिन मशीन को लगा हाँ उसके दिल को जरूरत है एक शॉक की, तो एक बटन फ्लैश हो रहा था, आपने बटन देखा, आपको खाली वो बटन प्रेस करना है। लेकिन बटन प्रेस करने के टाइम पे आपको उसको छूना नहीं है। क्यों? शॉक उसको भी लग रहा है, आप उसको छू रहे हो तो शॉक आपको भी लग जाएगा। तो आप खाली बटन प्रेस करो, झटका आने के बाद मशीन खुद ही बोलता है अभी आप उसको छू सकते हो और कंप्रेशन स्टार्ट करो। तो जैसे आपने स्टेप 3 में सीखा है वैसे ही आप कंप्रेशन स्टार्ट कर दोगे सेंटर ऑफ द चेस्ट में 100 से 120 पर मिनट, क्योंकि मशीन ने आपको बोला है करने के लिए। मशीन का पैड्स भी रहेगा, मशीन ऑन भी रहेगा, लेकिन आपको कंप्रेशन करना है क्योंकि मशीन ने आपको बोला है।
2 मिनट तक मशीन बंद रहेगा, मतलब ऑन ही रहेगा, लेकिन मुंह से कुछ बोलेगा नहीं, चुप रहेगा। आपको 2 मिनट तक अलाउ करेगा कंप्रेशन करने के लिए। दूसरे स्टेप में जाएगा, सेकेंड टाइम वो उसका दिल एनालाइज करेगा, डिसाइड करेगा कि उसको दूसरे शॉक की जरूरत है कि नहीं। उसका एक शॉक में उसका दिल स्टार्ट हो जाए पंप करना, उसको शायद 2, 3, 5, 10 की शॉक की जरूरत पड़ सकती है, लेकिन कितने शॉक देने हैं वो मशीन ही डिसाइड करेगा। आपको खाली उसके प्रॉम्प्ट सुनने, जो मशीन बोलता है आपको वही करना है। बहुत सिंपल टू यूज मशीन है, ठीक है? यस आनंद। ओके, देखिए आपने अभी भी एईडी का डेमो देखा। देखिए आप एक चीज जरूर करिएगा मेरी रिक्वेस्ट पे कि आफ्टर द एंड ऑफ द सेशन आप एईडी जरूर गूगल पे टाइप करिए और उसके जो आर्टिकल्स हैं जरूर पढ़िए। आपको अगर आप पढ़ेंगे तो आपको रियलाइज होगा कि ये मशीन लाइफ बचाती है। अच्छा, ये मशीन शायद आपने पहली बार देखी हो। ये मशीन बेसिकली वही मशीन है जो हॉस्पिटल में यूज होती है, जिसको डिफिब्रिलेटर कहा जाता है। ये छोटी मशीन बनाई है और पोर्टेबल बनाई है, यानी कि अगर कहीं हादसा हुआ है तो आप इमीडिएटली उसको कैरी करके आप लेके जा सकते हैं। ओके, और ये मशीन शॉक देती है, लेकिन हमसे कई बार पूछा जाता है कि शॉक देने वाली मशीन हम यूज करेंगे कैसे। मतलब जैसे मैंने आपको सीपीआर के बारे में बोला था, मैं आपको इस मशीन के बारे में वही बोलना चाहता हूँ कि कभी आपके लाइफ में ऐसा मौका आया कि आपको ये मशीन यूज करना पड़े तो प्लीज हेजिटेट मत करिएगा। और वो इसलिए क्योंकि हालांकि इसको शॉक मशीन बोला जाता है, लेकिन ये अचानक या बाय मिस्टेक, बाय चांस शॉक देती नहीं है। ये मशीन कोई सर्टेन लॉजिक के साथ बनाई गई है, और वो लॉजिक क्या है? जैसे ही आपने ये पैड किसी इंसान के पर लगाया तो सबसे पहले ये मशीन चेक करती है कि उसका रिदम चल रहा है कि नहीं चल रहा है। और अगर रिदम चल रहा है, यानी कि हार्ट का रिदम चल रहा है, तो ये मशीन कुछ करने वाली नहीं है। इनफैक्ट अगर ये मशीन के पैड मैंने अपने बॉडी में भी लगा दिए तो मशीन कुछ करने वाली नहीं है। लेकिन द मोमेंट आप ये पैड अटैच करोगे उस व्यक्ति के पर जिसको सडन कार्डियक अरेस्ट हुआ है, तो इमीडिएटली इस मशीन को पता चलेगा कि रिदम नहीं है और वो प्रॉम्प्ट करना शुरू कर देगी कि क्या करना है। तो आपको इंस्ट्रक्ट करेगी कि अब आप सीपीआर करिए, अब आप रुक जाइए, अब शॉक दीजिए, अब बटन दबाइए, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो खाली आपको उसके प्रॉम्प्ट सुनने, यानी कि मशीन क्या बोल रही है उतना सुनिए, काफी है। अब इस मशीन के बारे में एक चीज और आपको बता देता हूं। देखिए, अगर हम आउट ऑफ इंडिया जाते हैं तो सबको ये मशीन के बारे में पता है। हम ये चाहते हैं आई केयर के द्वारा कि मशीन सब जगह लगे। एंड जैसे जब डॉक्टर यश ने बताया, हमने ये बहुत छोटे एरिया में अभी किया है एंड स्लोली एंड स्टेडीली हम लोग बाहर भी जा रहे हैं। तो हमारी ये एक विश है और एक ड्रीम है कि मशीन सब जगह लगे ताकि जान बचे। और ये सब जगह लगनी भी चाहिए। कहाँ? जैसे कि सोसाइटीज में, जैसे कि क्लब्स में, जैसे कि जिम्नेजियम्स में। आपने कितने क्लिप्स देखे होंगे व्हाट्सएप पे जहां पे लोगों की जान चली जाती है, अचानक वो गिर जाते हैं और सडन कार्डियक अरेस्ट होता है और वो नहीं रहते। अब ये अगर ये मशीन उस जगह पे हो तो देखिए फर्क कैसे पड़ेगा। फर्क ऐसे पड़ेगा कि इमीडिएटली, अगर देखिए प्रॉब्लम 3 मिनट का है, मैं आपको बता देना चाहता हूँ इस हिसाब से। अगर एक आदमी सडन कार्डियक अरेस्ट की वजह से कोलैप्स होता है तो 3 मिनट में एक कार्डियक एम्बुलेंस का आना या एक डॉक्टर का आना बहुत मुश्किल हो जाता है। और उस समय अगर ये मशीन अवेलेबल है तो आप इमीडिएटली मशीन लेके जाइए, उसके बॉडी पे पैच रखिए और ये मशीन एज डॉक्टर बन जाती है उस विक्टिम के लिए, और उसको शॉक दिया जाता है और वो रिवाइव होने के चांसेस उस इंसान के बहुत बढ़ जाते हैं। That is the reason this machine is a very, very useful machine and this machine saves lives. ठीक है? All right. 2-3 और चीज ये मशीन के बारे में, ये बैटरी पे चलती है और बैटरी का लाइफ 5 साल तक है। तो 5 साल तक आपको कुछ प्रॉब्लम नहीं है मेंटेन करने के लिए, यूज करने के लिए। 5 साल के बाद आप इजिली बैटरी बदल के फिर से वही मशीन यूज कर सकते हैं। खाली ये पैड्स अगर आपने यूज किया किसी के ऊपर, तो ये पैड्स हर बार आपने यूज किया तो बदलना जरूरी है। तो मशीन के साथ एक सेट ऑफ पैड्स है और दूसरा सेट बॉक्स में है, तो अगर आपने यूज किया तो आप इजिली बदल के रख सकते हो। इसका अप्रोक्सीमेट कॉस्ट 70,000 to 1,00,000 है, लेकिन अलग अलग मैन्युफैक्चरर्स के अलग भाव है। लेकिन ये मशीन अपने घर में रखने वाली चीज नहीं है। बड़ा सोसाइटी है, बड़ा यूनिवर्सिटी है, बड़ा कॉर्पोरेट है, वहां पे लगना जरूरी है। तो ये थी मशीन के बारे में थोड़ी बातें।
तो 4 स्टेप हमारे हो गए। हमने कार्डियक अरेस्ट पहचान लिया, हमने कार्डियक एम्बुलेंस बुला लिया, हमने सीपीआर किया और हमने एईडी मशीन यूज कर लिया। अब हम आपको छोटा सा वीडियो दिखाने वाले, लेकिन उसके पहले 2-3 इंपॉर्टेंट पॉइंट। एक, सीन सेफ्टी बहुत जरूरी है। मतलब अगर रास्ते के बीच में कोई कोलैप्स हुआ या रेलवे ट्रैक पे कोई है तो उसको साइड पे लेके जाना और फिर ये सब करना बहुत जरूरी है। अपनी सेफ्टी पहले देखिए, कोई फायर हजार्ड है, इलेक्ट्रिसिटी पॉइंट है, पहले सेफ जगह लेके जाइए उसको, अपनी सेफ्टी देखिए और फिर ही मदद कीजिए। दूसरी चीज, विटनेस फॉल होना चाहिए। अगर आपके सामने कोई गिरा है या किसी ने बोला अभी तो ये आदमी गिरा है, तभी आप मदद करोगे। अगर आप सुबह मॉर्निंग वॉक के लिए जा रहे हो, कोई रात भर से गिरा है, तो ये सब करके कुछ फायदा नहीं है। और तीसरी चीज, बिस्तर पे हो जाता है काफी टाइम सडन कार्डियक अरेस्ट, तो उसको नीचे जमीन पे रखिए, हार्ड सरफेस पे रखिए और फिर ही कंप्रेशन कीजिए। तो ये था हमारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। अब छोटा सा वीडियो देखते हैं, उसके बाद हम सारे आपके सवाल के जवाब देंगे। आपको याद है ना, हम लोग उस दिन शादी में गए थे और आपको मेरी वो फ्रेंड याद है ना सुनीता, कल सेम कॉस्ट्यूम ना मुझे भी अपने लिए चाहिए। अंकल याद है आपको मैंने बोला था। अंकल 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 प्लीज हेल्प मी प्लीज प्लीज हेल्प मी। माय गॉड, कोई गिर गया है। चलो देखते हैं। अंकल क्या हुआ? प्लीज आप एम्बुलेंस को कॉल करेंगे? एक मिनट मैं देखता हूँ। हेलो, क्या आप ठीक हैं? हेलो, इनको कार्डियक अरेस्ट आया हुआ है। आप जाके शॉक मशीन लेकर आइए, तब तक मैं इनको हार्ट मसाज देता हूँ। उसका पोजीशन देखिए, एल्बो स्ट्रेट है, पूरा प्रेशर शोल्डर से आ रहा है। ये बॉक्स यहीं रख दीजिए और जैसे मैं कर रहा हूँ हार्ट मसाज, आप वैसे ही करिए। तो जरा भी टाइम वेस्ट नहीं है। जब तक दूसरा आदमी पैड्स लगा रहा है, एक आदमी कंप्रेशन कंटिन्यू रख रहा है। मशीन को खोला है हमने, पैड्स लगा रहे हैं जैसे पिक्चर में दिया है। मशीन ने प्रॉम्प्ट किया है शॉक, आपने बटन प्रेस किया है और दिल को झटका लगने की वजह से आदमी का दिल स्टार्ट हो गया है पंप करना, सांसें चालू हो गई, होश में आ गया आदमी। आपने उसकी जान बचा ली। देखिए कितनी बड़ी चीज है ये। तब तक आपका कार्डियक एम्बुलेंस आ गया है, उसको हॉस्पिटल जाना जरूरी है, होश में आया है तो भी मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए। और 3 हफ्ते के बाद, पूरा मेडिकल ट्रीटमेंट के बाद, वो नॉर्मल सी जिंदगी जी रहा है। याद रखिए, युवा हो, वृद्ध हो, किसी को भी हो सकता है कार्डियक अरेस्ट। हर 1 मिनट आप सोचते हो मदद करूं कि नहीं, उसके चांसेस सर्वाइवल के घट जाते 10% से। तो प्लीज आगे जाइए, मदद कीजिए। अगर आपने कार्डियक अरेस्ट पहचान लिया तो सीपीआर स्टार्ट कीजिए, और अगर आदमी होश में है, छाती में दर्द हो रहा है, उसको हॉस्पिटल ले जाए। थैंक यू। Thank you, Sumaya. Thank you, Anand.
इसके साथ हमारी ट्रेनिंग सेशन कंप्लीट होता है। हमारे पास कुछ सवाल ऑलरेडी आ चुके हैं। इन सवालों के जवाब हम पहले दे चुके हैं। कुछ कुछ सवाल हम यहाँ पे लाइव लेंगे। इसके बावजूद अगर किसी को कोई सवाल पूछना है, आप अपना हैंड रेज कर सकते हैं। सुमया, जिनके हैंड्स रेज्ड है, यू कैन आस्क देम टू स्पीक एंड वील टेक क्वेश्चंस डायरेक्टली। एक क्वेश्चन है चैट बॉक्स में विच आई वांट टू पोस्ट टू डॉक्टर लोखंडवाला। किसी ने पूछा है कि उनके भाई के साथ एक अपघात हुआ, ही हैड अ कार्डियक अरेस्ट, और उस समय डॉक्टर ने खुद उन्हें रिवाइव करने की कोशिश की, सारे स्टेप्स टाइम पे किए गए, लेकिन उनकी जान नहीं बच पाई। उनका सवाल ये है कि जब डॉक्टर खुद नहीं बचा पाए तो ले पर्सन सीपीआर करके क्या सच में हेल्प कर सकता है? सवाल अच्छा है. इसमें ये जानना, ये समझणं जरुरी आहे. हे आपल्याला समजायचं आवश्यक आहे की सीपीआरनी सगळे, आपण सध्या काय स्थिती आहे, कार्डियक अरेस्ट मध्ये कोणीच वाचत नाही. 80% कार्डियक अरेस्ट हॉस्पिटलमध्ये होत नाही, रुग्णालयात होत नाही, पण ते घरी, मार्केटमध्ये, स्टेशनमध्ये, पब्लिक प्लेसला होतात. असे कार्डियक अरेस्टचे लोकांना अजिबात तुम्ही काही नाही केलं तर ते वाचणार नाही. सीपीआर टाइम मध्ये व्यवस्थित करून, चालू ठेवून, त्याच्याबरोबर शॉक मशीनची गरज पडली तर शॉक देऊन, त्याच्यातनं 30 ते 40% लोकांना तुम्ही वाचवू शकता. सगळ्यांना नाही वाचवू शकता, पण 30 ते 40% हा मोठा नंबर आहे. त्यामुळे ह्याचं असं म्हणून चालणार नाही की हे वाईट झालं की तुमचे भाऊ वाचू नाही शकले, पण अनेक लोक वाचू पण शकतात. त्यामुळे हे समजायचं गरज आहे की सीपीआर आपण केलं पाहिजे आणि प्रयत्न, ज्यापर्यंत डॉक्टर ब्रायननी पेशंटला 1 तास सीपीआर केलं होतं आणि ते पेशंट वाचलं, त्यामुळे मशीन आल्यापर्यंत सीपीआर चालू ठेवा. सीपीआर चालू ठेवा, ह्याचानी तुम्ही कोणाचं जीव वाचवू शकता. We have another question. It says, is there any relationship between diabetes and cardiac arrest? Brian, you would answer that? Doctor, you're on mute. Dr. Brian, you're on mute. Yeah, I know I've been muted for a long time. So right now I would say that there is no direct relationship between diabetes and sudden cardiac death. However, the situation is such that diabetic patients are more likely to develop both failure as well as are likely to develop the coronary artery disease. So because of these two factors, patients who have pump failure, who have left ventricular function, म्हणजे हार्टाचं पंपिंग कमी असतात, 30% कमी आहे, 35% कमी आहे, तर हार्ट वेंट्रिक्युलर फिब्रिलेशन आम्ही म्हणतात, ते हार्ट सडन कार्डियक अरेस्ट मध्ये जातात, ते जास्त असतात डायबिटीज मध्ये. आणि दुसरं जे आहे ते ब्लॉकेजेस असतात जास्त डायबिटिक पेशंट्स मध्ये. तर आम्हाला चान्सेस जास्त आहे की डायबिटिक्स मध्ये सडन कार्डियक अरेस्टचा चान्सेस जास्त आहे, पण डायरेक्ट रिलेशनशिप नाही. डायबिटीज आणि सडन कार्डियक अरेस्टचं डायरेक्ट रिलेशनशिप नाही, पण इनडायरेक्ट रिलेशनशिप आहे. Sumaya, do you want to take questions of the people who raised their hands now? Yes. सचिन जी, आप आपका सवाल पूछ सकते हैं. बाकी सबको म्यूट कर दो सुमया, so there's no echo. हाँ मॅडम, माझा एक प्रश्न आहे की वाढतं वय आणि कार्डियक अरेस्ट किंवा हार्ट फेल्युअर हे म्हणजे नेसेसरी आहे का? तुमचा प्रश्न मी समजलो बरोबर. तर हे आहे की जसं वय वाढतो तसं कार्डियक अरेस्ट चान्स वाढतो का, हे समजायचं. मॅक्सिमम कार्डियक अरेस्ट 40 आणि 60च्या वयाच्या मध्ये होतात. ते मेल्स मध्ये, म्हणजे मेन मध्ये जास्त कॉमन आहे, माणसामध्ये, स्त्रीमध्ये थोडं कमी आहे, पण 40 आणि 60च्या वय. पण कोणत्याही वयाला, इव्हन लहान मुलाला आणि वयस्थाला होऊ शकतो. पण तो हे महत्वाचं आहे की एकदम वयस्थाला जास्त होतो असं नाहीये. जे त्यांच्या लाईफचे इम्पॉर्टंट इयर्स आहे, प्रोडक्टिव्ह इयर्स म्हणतो, वर्किंग पीपल, 40 आणि 60च्या मध्ये, त्यांच्यामध्ये सर्वात जास्त कार्डियक अरेस्ट होतो. मी क्वेश्चन विचारला होता, ते बरोबर कनेक्ट झालं. ते सैना जी, आप पूछ सकते हैं आपका सवाल.
हॅलो. हाँ जी, विचारा नमस्कार सर अँड मॅडम. माझा प्रश्न असा आहे की धूम्रपान आणि मद्यपान करणारे जे नागरिक आहेत किंवा व्यक्ती आहेत त्यांना ह्या आजाराचा किंवा कार्डियक अटॅकचा जास्त धोका संभवतो का? मी असं बघा, धूम्रपान केलं ना तर चान्सेस जास्त आहे, कारण धूम्रपान मध्ये हार्टचं ब्लॉकेजेस व्हायचं एक मोठं रिस्क फॅक्टर आहे. आणि आम्ही म्हणतात की धूम्रपान बंद केलं, आणखीन ब्लड प्रेशर कंट्रोल केलं, डायबिटीज कंट्रोल केलं तर हार्ट अटॅक आणखीन सडन कार्डियक अरेस्टचे चान्सेस कमी होतात, पण झिरो नाही होतात. बाकीचं अल्कोहोलचं तसं काय डायरेक्ट रिलेशनशिप नाही आहे. म्हणजे काय की कधी कोणी थोडं घेतलं तर काय प्रॉब्लेम नाही आहे, पण डायबिटिक असणार, नाहीतरी हार्ट फेलियर असणार आणि त्याने पुष्कळ अल्कोहोल नाहीतरी काहीतरी जास्त लिक्विड घेतलं तर त्यांचा हार्ट फेलियर वाढणार. पण धूम्रपान मध्ये डायरेक्ट रिलेशनशिप आहे की धूम्रपान केलं तर हार्ट अटॅकचा चान्सेस जास्त असतात, आणखीन हार्ट अटॅकचे चान्सेस जास्त असतात, तर त्याच्यामध्ये 30% सडन कार्डियक डेथ पण होतात. तर धूम्रपान सगळ्यांना बंद करायचं. आणि टोबॅको काही पण फॉर्म मध्ये ते स्नफ आहे नाही, च्युइंग टोबॅको, स्नफ ते सगळं बंद करायचं. आमच्या इकडे 10 करोड लोक सिगरेट ओढतात आणि 10 करोड लोक टोबॅको दुसऱ्या तरफचं घेतात, म्हणजे स्नफ मध्ये घेतात, च्युइंग मध्ये घेतात. तर इंडियामध्ये 20 करोड लोक टोबॅको घेतात. त्याचा एकदम एक प्रॉब्लेम आहे आमच्या देशमध्ये. We have a question in the chat box. ब्लड प्रेशर महिन्यातून एकदा चेक करायला पाहिजे का? असं नाही आहे. It's not really required to check every month. You must know your blood pressure when you are about 20 years of age or even earlier. If it is normal, then you need to check it once in 5 years. तर एकदा नॉर्मल असतात तर तुम्ही 5 वर्षामध्ये परत चेक करायचं. नॉर्मल नाही आहे, वाढलं तर तुम्हाला 1 महिन्यामध्ये नाहीतरी कधी कधी 15 दिवसमध्ये जेव्हा नॉर्मल झालं ते ब्लड प्रेशरचं लाईफस्टाईल मॉडिफिकेशन करून नाहीतरी तुम्ही ते टॅबलेट्स घेऊन डॉक्टरने तुम्हाला प्रिस्क्राईब केलं आणि नॉर्मल झालं, त्याचं नंतर एव्हरी 3 मंथ्स आणि त्याचं परत पण झाला तर एव्हरी 6 मंथ्स पण इनिशियली तुम्हाला 2-2 आठवड्यामध्ये. आणि पुष्कळ जास्त ब्लड प्रेशर झालं तर तुमच्याकडे एक बीपी मॉनिटर पण घरी ठेवू शकतात आणि तुम्ही आठवड्यामध्ये बीपी घेऊ शकतात. So may I can there take are one last question? There are 2-3 people who put their hands up. Should we allow them to ask a question? One last question, please. Okay. Sanjay Kumar ji, आप पूछ सकते हैं. आपका माइक अनम्यूट कीजिए. Yeah, thank you so much. I think, can you hear me? Yes. At the outset, I would like to send my warm greetings to Dr. Yash Lokhandwala. I'm not sure if he remembers, 20 years ago, I attended one of his workshop on ECGs at Mahabaleshwar for the Konkan Association of Physicians. And his passion for electrophysiology and now association with the CPR is amazing. I have a few observations because this is a very passionate subject even for me. In the initial segment when you mentioned about assessing a patient, now that we are hearing about narcotics, now that we are hearing about drug use, so I think we are oversimplifying when we are telling the bystander. This is a bystander program, I understand that, and we should be very particular in using this word every now and then. जनतेसाठी आहे. तर bystander साठी सरांनी एकाच्या प्रश्नाच्या आन्सर मध्ये सरांनी उत्तर दिलं आहे की तुम्ही पल्स बघा, पल्स ऑक्सिमीटर नाही, तुम्ही फील द पल्स. तर नुसतं रेस्पिरेशन नाही आणि अनकॉन्शियस आहे, दॅट इज वी आर टॉकिंग अबाउट रेस्पिरेशन आणि सेरिब्रल सर्किट. वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट कार्डियक. तर पल्स कुठेतरी एकदा प्रयत्न करा. नॉट एव्हरीबडी मे बी एबल टू असेस द पल्स, देन यू कॅन स्टार्ट. But do not forget about the other cause which may be getting commoner in India with the drug abuse, respiratory arrest and basically unconsciousness due to drug overdose. हे पहिलं ऑब्झर्वेशन झालं. दुसरं ऑब्झर्वेशन होतं मॅडमनी जेव्हा सांगितलं की तुम्ही सकाळी वॉकला जाता आहे आणि दिस हॅज टू बी अ विटनेस अरेस्ट. येस, युअर चान्स ऑफ गिव्हिंग अ पर्सन
successful CPR, as you have already mentioned there, decreases with the progression of time the patient is unattended for. But when you say I'm going for a morning walk and I saw somebody lying there, you are presuming that he's lying from the night onward. No, you can always give a try. If you want to presume or on the positive side, attempt a CPR. If not successful, well and good. But yes, if somebody knows ki ratri pasun to ahe, we have to be medico-legally correct also. As doctors, आपला जेव्हा मेसेज जातोय जनतेला तर आपल्याला मेडिको लिगली करेक्टच शब्द वापरले पाहिजे आणि तो मेसेज आपला तसाच असला पाहिजे. आय अप्रिशिएट एव्हरीबडी अँड माय हॅट्स ऑफ टू ऑल ऑफ यू. दिस इज अ ग्रेट वीक. फक्त मला अजून एक वाटतं की आपण मराठी शब्दकोश महाकोश तयार करतोय आणि आपल्याकडे अजून हे शब्द प्रॉपर येत नाही की मराठीमध्ये आपण जनतेपर्यंत हे एक्झॅक्ट कुठला टर्म वापरावा, बाय स्टँडर्डला जनजागृती कशी करावी आणि हार्ट अटॅक आणि कार्डियक अरेस्ट खूप एक याची आवश्यकता भरपूर आहे. दिस इज अमेझिंग वर्क यू आर डुइंग. हॅट्स ऑफ टू ऑल ऑफ यू. थँक्यू सर. So Maya, can we have the concluding remarks, please? Would like to ask Dr. Brian Pinto to give his concluding remarks. Thank you, Somaya. Thank you, Yash. It's been a wonderful seminar that we've had this, starting of this program for the entire week. I think it's been great. But let me first of all thank the Honorable Minister, Ms. Aditi Tatkare, who came on in the beginning and gave us her wishes. The respected Director General, Mr. Pandar Pathe, our esteemed directors, Mr. Ganesh Ramdasi and Mr. Dayanand Kamble, and all the colleagues who, helped us, not to forget Kinjal, who took up so much of her time to help us for this program. Besides that, I want to say, I hope this week that we are doing will help to push this cardiac awareness, this sudden cardiac death program further, to be able to make more and more people aware that almost 3 million people die of sudden cardiac death in India. That's a very large number of people. Many of them are under the age of 50. 50 khali astat. And I think it's very important that at least one member in the household should know CPR. And we should start some programs at the school, college level, which we are doing. Also, driving licenses, we can create a situation that people cannot get a driving license without knowing CPR. And I think this has been a great start. And congratulations to the whole iCare team for having put such a great effort. Somaya, you, Anand, Vilma, for putting such a great effort forward. And also to Yash, who has, been messaging so often to everybody. Quinton, who has done a wonderful job over there. Manju, who has been great with her work. And everybody else. I may have forgotten some names, but everybody else in the team, including Lucy. I must, thank them all. And hopefully we can get better as the days go by. Thank you once again, and God bless. Can I request everyone to have their cameras on for a minute, please? Ramdasi ji has requested us to all have our cameras on. Pandar Pathe, sir. Ramdasi ji, we can't see you. My camera is on. Yes, now we can see you. I think ma'am was not able to join us towards the end as we brings us to the end. Dr. Pandar Pathe, if there's anything you would like to add, we can close the session after that. आजचं हे जे सेशन होतं ते खरोखरच माझा आवाज येतोय? हो सर. नाही, अत्यंत उद्बोधक आणि माहितीपूर्ण असं होतं आणि प्रत्यक्ष आपल्या आयुष्यामध्ये ज्याचा उपयोग होणार आहे, विशेषतः एखाद्याचं आयुष्य वाचवण्यासाठी ज्याचा उपयोग होणार आहे, अशा प्रकारचं हे ट्रेनिंग होतं. आणि आजचं सगळ्यांनी सांगितलं की सध्याचं आयुष्य फार स्ट्रेसफुल आहे आणि कार्डियक अरेस्ट आणि हार्ट अटॅक यातला फरक आपण सांगितलं हे फार महत्वाचं आहे. कारण बऱ्याच वेळा हार्ट अटॅक आणि कार्डियक अरेस्ट हे एकच आहे असं लोकांना वाटतं, पण या दोन वेगळ्या गोष्टी आहेत. ही फार महत्वाची माहिती या निमित्तानं सगळ्यांना मिळाली. आणि त्याच्यामध्ये सडन कार्डियक अरेस्ट मध्ये सीपीआर किती युजफुल आहे, किती उपयुक्त आहे, हे पण आपण आपल्या प्रेझेंटेशन मधून फार चांगल्या पद्धतीने दाखवलेलं आहे. मला असं वाटतं की सगळ्यांनाच या माहितीचा, या सेशनचा या पुढच्या आयुष्यामध्ये उपयोग होईल. आणि जेव्हा केव्हा असा काही प्रसंग येईल
वाईट प्रसंग खरं म्हणजे तो आहे की कुणाचा सडन कार्डियक अरेस्ट झाला तर त्याच्यामध्ये आपण या माहितीचा उपयोग करून त्या माणसाचा जीव वाचवू शकू. त्या दृष्टीने हे प्रशिक्षण किंवा हे सेशन फार उपयुक्त होतं. मी पुन्हा एकदा सगळ्यांना मनपूर्वक धन्यवाद देतो. थँक्यू. Thank you, everyone. Thank you. Thank you. So may you can end the meeting, please. Thank everybody for joining in and stay safe.